काला रे बलम मोरा काला काला रे. Artists are different. They are born different. उनका understanding, उनका interpretation of characters or an event is different. मंच आपको पूरा खींच लेता है, पूरा absorb कर लेता है. Demands of being a performer is not only what you choose to sing and how you sing. इस घर में मेरा गुजारा नहीं ननदी, इस घर में अरे सासू मोरी आवे सो आवे मोरी दीदिया. आए तो भैया आए. गज भर का घूंघट काढ़ूं फिर भी कहे मुंह खोला, अरे फिर भी कहे मुंह खोला. हम क्या गाना चाह रहे हैं उससे भी ज्यादा सम्मान अब ये भी बात को तथ्य को देने की आवश्यकता है कि जो सामने दर्शक श्रोता बैठा हुआ है उसे कितनी समझ है, क्या वो आपकी यात्रा में है. See, folk is a journey. This government has for the first time recognized folk arts and folk culture and has honored folk artists in abundance. हमके झूला में झूला द बलमा, हमरी अचरा के छैया जुड़ा ल बलमा. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today my guest is noted classical and folk singer Malini Awasthi. To say that her voice is molten gold would be no exaggeration. She's been awarded the Padma Shri and is a recipient of several other awards. Malini Ji's special connect is with her home state Uttar Pradesh. She's completely in tune with folklore and folk music of the state. Join me in this conversation with Malini Awasthi. Malini, thank you so much for coming to our studio. I can't tell you how happy I am to get this opportunity कि मैं आपसे बात कर रही हूँ आज स्टूडियो में face to face. You know, socially मिलना अलग होता है या आपको concert में देखना अलग होता है, लेकिन to have this opportunity where I can ask questions and you have no option but to answer me. Thank you so much, Smita ji, for inviting me over. In fact, I have been following your podcast and some of the episodes have in fact followed, and they made such interesting and powerful interactions. Thank you. So I loved them, and it was a surprise and when I got a call, and of so course, here we are. Of course. So Malini ji, we've listened to you, we've seen you, we've heard you, right. We have watched you singing, because आपके साथ ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं जो आंखें मूंद कर सुने या आंखें खोल कर सुने, एक्सपीरियंस वही होता है. लेकिन आपके साथ इट्स लाइक जब आप स्टेज पे होती तो इट्स लाइक अ फुल इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज इट्स अ विजुअल एक्सपीरियंस. और आप जब सिर्फ गाती नहीं है, आप एक्सप्लेन भी करती हैं. तो जैसे फॉर मी हिंदी इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन जब आप गाती हैं हो सकता है एक या दो शब्द या कुछ अल्फाज मुझे समझ में ना आए, पर आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि ये गाने के बाद, अंतरा के बाद आप एक्सप्लेन ज़रूर करेंगी. So, usually classical singers take it for granted probably. लेकिन आप दोनों genres में, classical and folk, आप माहिर हैं and you understand, you connect. तो आप मुझे बताइए, when did you feel the need to have this complete connect with the audience? There are so many multiple questions, जी. and I'll try to address them all. जी. Smita, I did realize that India was changing and artists started taking their audience also for granted in a way that they really assumed जी. that they will be as, aware and informed about classical music or any form of music that they were singing. But I have always tried to be on the other side of the, fence. I would like to believe how would I perceive my performance if I were an audience, if I'm watching anyone, if I'm listening, or be it any relationship, any situation in life, I have tried to be the other person, to imagine what it can be. I think that has helped because, when I grew up in a small town, my father was a doctor. कहाँ पे? I was born in Kannauj. उत्तर प्रदेश. बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ठेठ उत्तर प्रदेश के हैं एंड अ वेरी प्राउड वन. पिताजी डॉक्टर थे स्मिता. सो पहली तो मुझे लगता है कि एक जब आप वो भी प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज में थे, तो गांव शहर कस्बों में रहना, आप जब मुझे लगता है मैं
उनके जो मरीज आते थे उनके साथ इतना वक्त बिताती थी। अच्छा। और अस्पतालों में भी जो मरीज हैं उनके संग जाना आना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक फोक पे मैं इसलिए आ रही हूँ कि जो एक कनेक्ट है, एक संवाद स्थापित करना, अपने जैसा महसूस करने का, दुख किसी का दुख सुख है, एक साथ साझेदारी खाना। क्योंकि ये कई बार लोगों को लगता है कि you people judge you from your background, you know, people judge you or people question you or they doubt and not only your intentions but also the purpose behind, doing this. But I think it all began at a Bachpan very se. young age, because my father was a doctor. We lived in the hospital campuses, and somehow I was very, very comfortable being around, sick and ill, and we were used to my father getting up at odd hours and going to attend the patients. I think that natural connect of feeling what other person goes through when in pain, I think that also helped in my emoting the folk. My parents initiated classical music training because it's surprising, Smita, nobody sang in my family, my parents. कोई मैं बुआ चाची कोई घर में गा नहीं रहा था। ताई जी लोग गाती थी घरेलू संगीत, जो मैंने जिसमें कि मुझे वो पूरा चेहरा दिखता है जो हमारे यहाँ की स्त्रियों का था, लेकिन शास्त्रीय संगीत का कहीं नहीं। बस उन्हें लगता था कि ज़रूर आना चाहिए, तो मेरी बहन और हम दोनों को सिखाना शुरू किया। तो हम मुझे याद है कोई भी कॉन्सर्ट बनारस की, इलाहाबाद की बचती नहीं थी, प्रयाग की, जो पिताजी ले न जाते हों। सारे बड़े कलाकारों को हम लोगों ने मंच पे सुना। तो उस समय वो बड़ा सक्रिय समय था, 1970 का दशक, 80 का दशक भी, जब पूरी तरह से आप विद्वान भारत के जितने इस समय आप पंडित रविशंकर जी, गुदई महाराज जी, हमारे गुरु पद्म विभूषण गिरजा देवी जी, अप्पा जी हम लोग आदर से कहते, सब मंच पे गा बजा रहे थे। और बहुत इवॉल्व ऑडियंस थी। लोग कला को समझते थे, कला नहीं समझते तो समझने का प्रयास करते थे। और धीरे धीरे हमने वो भी समय देखा जब भारत बदलने लगा। और उस समय कहीं ना कहीं, स्मिता, मुझे ये लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम क्या गाना चाह रहे हैं उससे भी ज़्यादा सम्मान अब ये भी बात को, तथ्य को देने की आवश्यकता है कि जो सामने दर्शक और श्रोता बैठा हुआ है उसे कितनी समझ है, क्या वो आपकी यात्रा में है। See, folk is a journey. If I'm an artist, I'm performing on stage any random song. And if I am not involving my audience, if they are not part of this story, because every folk song is a story, if they are not part of this, then there is no point. Similarly with classical music also, आप क्या गा रहे हैं वो तो ठीक है, क्योंकि शास्त्र और लोक में यही अंतर है कि शास्त्र में संगीत के सुनकार शास्त्र को पढ़ के श्रोता भी होते हैं, उस तरह लोक में एक सहज भाव से आपका ऑडियंस कोई भी हो सकता है, भाव भी आम होने होंगे। तो आप यदि उस यात्रा में अपने साथ लोगों को शामिल नहीं कर रहे हैं, आई डिलिबरेटली ट्राई टू इंक्लूड दैट in my performances. I saw to it that when I perform, I talk about what I'm going to sing. I explain my audience so that if it's an urban audience, और बिकॉज हम तो डायलेक्ट में गाते हैं, हम बोलियों में गा रहे हैं, हम अवधी में गा रहे हैं, हम बुंदेली में गा रहे हैं, भोजपुरी में गा रहे हैं। मुंबई में बैठा आदमी उसको समझना चाहता है, तो 2 कदम हमें तो चलना चाहिए ना गाने के साथ, ये समझते हुए कि उनकी रुचि है लेकिन वो भाषा नहीं जानते। और ये मैंने कहीं ना कहीं, स्मिता, I can say that I broke that taboo also, क्योंकि उस समय तक people were very rigid and it was not considered to be a good thing to speak in the middle of your performances. And it wasn't a collective experience. Yes. My childhood memories, जैसे पंडित जसराज के कॉन्सर्ट में चली गई मैं, a pre-teen going there. Yes. अगर आपने सीखा नहीं क्लासिकल म्यूजिक एंड यू आर जस्ट 8-9 years old, आप कितनी देर बैठ के सुन सकते हैं जब तक वो आपने बचपन से सुना नहीं है, you can't. Whereas if you go for an MS Subbalakshmi or any of these bhajan evenings or something, that was an easier to comprehend situation. Yes. Whereas classical music was hard. So jab aap, let me go back. I like to add something. जी. When you speak about MS Subbalakshmi ji and the likes, दक्षिण भारत में परंपरा हर घर में भरतनाट्यम या कर्नाटक संगीत
एलिमेंट्री है, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग अप। आप भी जानती हैं, आप जी। कर्नाटक से हैं, जी। कि दक्षिण भारत में इसलिए इट इज़ सो इजी टू क्योंकि दे हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू मिस सुब्बलक्ष्मी जी। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, वी आर कमिंग टू द लार्जर क्वेश्चन नाउ स्मिता, कि ये सब हम अपेक्षा करते हैं बच्चों से कि वो समझें जाने, लेकिन इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग अप, इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, संस्कार जिसे कहते हैं। घर में जब तक हम लोगों ने, हमें कैसे आया, मैंने अभी अपना, आई बिगैन विद माई पेरेंट्स सी, तो वो जब तक आप घर में नहीं, तो उत्तर भारत में भी मुझे लगता है कि एक समय हमने ज़रूर देखा कि वो शास्त्रीय संगीत बच्चों को सीखना ही है, सितार आना चाहिए, गाना सीखना चाहिए। ऐसे लोग गायक नहीं बन सकते, लेकिन वो अप्रिशिएट कर सकते, बहुत अद्भुत श्रोता बन सकते हैं। इसलिए जो आपने एक बात कही कि मैं समझ रही थी आपका मतलब कि आप MS सुब्बलक्ष्मी जी के भजनों का, यानी जब हार्डकोर जो कहते हैं कि एकदम प्योर क्लासिकल म्यूजिक यदि नहीं है, तो आप उससे ज़्यादा रिलेट कर पाती थी। हाँ, एटलीस्ट टिल आई अंडरस्टूड द न्यूआंसेस Yes. ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, और whatever. I mean, till I could also figure out. See, growing up in the north, the affinity was towards Hindustani. Yes. Because आप आसपास सुन रहे हैं, Right. so I would listen to Girja Devi, and it would, Yes. it would come to me. Correct. But if I was to listen, to a Carnatic vocalist, it wouldn't resonate so much. लेकिन जैसे मैंने कहा, जैसे आप कह रही थी कि folk music was at, मेरी बुआ गाती थी, both my buas used to sing classical music, Carnatic. So I would get absorbed, Yes. So you are, but the point is that like your parents told you कि सीखना है, आपने at what point, like a normal teenager, didn't you say नहीं ये नहीं करना, मैंने फिल्मी गाने गाने? No, never. नहीं स्मिता, अभी तो, अब मैं जब पीछे मुड़ के अपनी जर्नी देखती हूँ, तो मैं, आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक दिस, बट आई डू बिलीव इन पास्ट लाइफ. आई डू बिलीव, आई थिंक इट वाज अ जर्नी विच वाज ड्यू, मुझे ये करना ही था इस जन्म में आके, क्योंकि जिस तरह से संगीत न करने को, कम से कम यदि सीख लिया था, तो आगे न जारी रखने के तो सारे बहाने थे मेरे पास जीवन में, क्योंकि आई गॉट मैरिड यंग, और उसके बाद इनकी अवनीश के हस्बैंड भी ऐसे सेवा में थे कि उस समय बहुत हम ऐसे समाज में कह सकते हैं हम लोग थे कि जहाँ पे बहुत जजमेंटल सोसाइटी थी, और कहीं ना कहीं वो पीढ़ी भी ऐसी थी कि आप सोचते अब अच्छा, अब कर लिया, अब जितना करना था हो गया। उसके बाद भी ये जुनून और ये एक जुनून और कमिटमेंट जारी रहा, तो आई थिंक मुझे करना ही था, मुझे लगता है कभी कभी। आप जो कह रही, कब मैंने तय किया, बहुत छोटी उम्र में, क्योंकि गुरु तो सिखाने मेरी बहन को आते थे, मैं बैठ जाती थी साथ में। अच्छा। और बहुत छोटी उम्र में प्रयाग संगीत समिति की प्रतियोगिता में मेरे जो गुरु थे, शुजात हुसैन खान साहब, उस्ताद राहत अली खान साहब, तो सब आकाशवाणी के कंपोजर्स थे। एंड मैं बहुत छोटी उम्र में उनके हाथों में एक तरह से गई, उनका वरद हस्त मिला। और जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई के बारे में लोग सोचते हैं या सोचते हैं कि क्या गाएं, तय करते हैं ज़िंदगी में, उस समय बहुत एक मैच्योरिटी के लेवल पे गाना बजाना गा रही थी और सीख रही थी। तो मैं जब 16 साल की थी, उसके पहले आप सोचिए कि मैं बाकायदा, जब गोरखपुर में पिताजी पोस्टेड थे, मैं लखनऊ आती थी, तो मैं यहाँ से या दिल्ली पिताजी जाते तो शायरों की किताब लेके जाती थी कि अब जिगर करना है, मजाज लखनवी, अब फिराक पे काम करना है। या फिर जब मैंने छायावादी कवियों को शुरू करा, तो महादेवी जी, फिर निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर पंत, मैथिली शरण गुप्त, हमने सारे, फिर कवि, हमारे जो उस्ताद थे वो भी हैरान हो गए थे शुजात साहब कि ये कहाँ से चीज़ें लेकर के आती है। तो आई थिंक दैट वाज पार्टली आई वाज अ गुड स्टूडेंट। तो घर पे ये प्रेशर कभी नहीं था कि पढ़ाई की वजह से ये कभी उपेक्षित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। एंड my parents were also, I think, surprised कि it was the passion was very much there. I was winning awards, I was performing, and at a very young age, when we moved to Lucknow, then I joined Bhatkhande. So I was doing my graduation and my graduation in vocal music both. तो म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं था कहीं, तो हम वोकल म्यूजिक भी कर रहे थे शाम को, इवनिंग क्लासेस, और दिन में आई वाज doing my honors with Sanskrit, history and political science. Lovely. So दोनों चीज़ें मेरी पैरेलल ही चलती रहीं, तो कभी लगा नहीं कि
इसे छोड़ना है। सो वो तो कभी मैं देखती हूँ कि कभी सुबह उठकर रियाज करना, या और मुझे लगता है कि ये मिलता भी शायद तभी है जब आप पूरी तरह से अपने आप को विलीन कर लें। समर्पित कर दें। टोटली टोटली, बिल्कुल। मालिनी जी, एक वक्त होता है जब लड़कियां कहती हैं बस ये नहीं करना, और एक वक्त होता है, या कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है, कहा जाता है कि मत करो, राइट। राइट? मोस्ट singers, most performing artists go through both phases or at least one phase. आपके साथ हुआ? दोनों हुए। अच्छा। दोनों इस तरह से हुए क्योंकि नहीं करना है का निर्णय तो खुद का था। मैं जैसा होता है उस ज़माने में, अब मैं आजकल के बच्चों को तो ये सुनने में भी वो लगेगा, भाई आई गॉट मैरिड इन 87, आई गॉट एंगेज 88 में शादी हुई, यानी हम बात ही कर रहे हैं 35 साल पुरानी। तो जब लंबे समय तक हमारी शादी, हम लोग की कोर्टशिप रही अवनीश की हमारी, और जब शादी हो गई तो उस समय उत्तर प्रदेश बहुत रिमोट एरियाज में, आपको पता है इनिशियल पोस्टिंग सब छोटी छोटी जगहों में, ना कहीं आकाशवाणी, ना कहीं रियाज के लिए कोई तबले वाला भी नहीं मिलना। और बहुत जल्दी परिवार में तीसरा भी, मतलब बिटिया आ गई, और बहुत जल्दी चौथा यानी कि बेटा आ गया। तो हमारी शादी की तीसरे सालगिरह में हम गृहस्थी दो, और में ही हमारे रहे। हाँ दो, हम यानी हम 4 हो चुके थे। तो एक परिवार का जो सुख है, जीवन का सुख, उसमें कहीं ना कहीं आदमी इस तरह भी सुखी हो जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्मिता, हम लोग अपने बड़ों के दिखाए रास्ते पे एक मैंने पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जजमेंटल फैमिलीज, जजमेंटल सोसाइटी, बोथ पीपल अराउंड अस हु लव यू, हु एडोर यू। इनफैक्ट वो भी सब जानते हैं अब शादी के बाद क्या। अब शादी का मतलब ये है कि बच्चे हो गए, और फिर सबसे मजेदार बात कि अब शादी यदि का ये सब सर से हो गई है तो फिर अब इन्हें क्या करना है। अब तो ये सुख की पराकाष्ठा पे, मतलब अब तो कुछ करना है नहीं, पति का इंतजार करना है, खाना उस बनाना पड़ाव है। पे आ गए आप। उस पड़ाव पे हमको लोगों ने भेज दिया। और मैं अपना भविष्य का आगे निर्धारित करना या सोचना, उसके लिए बहुत कच्ची उम्र थी, 21 साल की थी मैं, और 22 साल में माँ बन गई, 23 साल 24 साल में दोनों बच्चे हो गए। और वो बहुत सुख का समय था क्योंकि हम दोनों एक साथ गृहस्थी के, जब कहते हैं ना कि एक साथ एक जीवन को आप आगे बढ़ाने के लिए चलते हो, तो जो जीवन मैंने इनके माध्यम से जिया या देखा, भारत का लोक, जो मैं बार बार कहती हूँ, जो पिता के साथ चूंकि वो डॉक्टर थे देखा, और फिर अवनीश के साथ और भी निकटता से भारत का लोक देखने का अवसर मिला, तो वो मेरा मन बहुत उससे पूरा था कि मैं, वो गांव है, कस्बे हैं, आधे समय बिजली नहीं आ रही है, बैलगाड़ी में जा रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि इनकी एक जगह पोस्टिंग थी और वहाँ बिजली नहीं थी, पानी नहीं आ रहा था, और बच्चे को, तो मुझे कुएं से मैंने पानी निकाला है। ये बात है, मुझे याद है, मैनपुरी में एक जगह है भोगांव, वहाँ पे एसडीएम थे, तो वहीं तहसील में रहते थे हम लोग। तो पानी कुएं से खींचा, तो मेरे साथ जो पीछे एक नायब तहसीलदार की पत्नी रहती थी, बोली कि अरे मैडम जी आप रहने दीजिए, आप कहाँ कर पाएंगे। हमने कहा ये सुख तो लेने दो, पानी आज मैं कह तो सकती हूँ कि मैंने पानी खींचा है। तो ये 89 की बात है। उस सुख में आप जब होते हैं, और परिवार में भी सब कहते हैं अब हो गया, अब तो क्या करना है अब, क्योंकि मंच जो था, वो भी बात है स्मिता कि उस दौर में करियर मतलब था बम्बई। बम्बई कह रही हूँ, उस समय करियर माने मुंबई, आप जाइए, आपके एल्बम्स रिकॉर्ड जो निकलेंगे, तो बॉम्बे वॉज योर फ्यूचर। यू हैड टू बी, यू नीडेड टू बी इन मुंबई टू बिकम समथिंग। और वो मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट था कि मुझे घर, परिवार, अपनी जड़ छोड़ कर के कोई भी चीज़ पाने कहीं नहीं जाना है। वो उस समय भी मेरे हृदय में, मन में बहुत स्पष्ट था, और मुझे बहुत खुशी है कि उसी विश्वास पे कायम रहते हुए मुझे जो नाम मिला वो मुझे नहीं करना था। प्लस मुझे लगता है ससुराल में भी जब मैं ब्याह करके आई तो बहुत खुले दिमाग के, सब बहुत अच्छे थे। अवनीश की कोई सिस्टर्स नहीं, ये लोग 3 भाई हैं, सब आईआईटी के, तीनों ब्रदर्स, सब पढ़ने पढ़ाने वाले। वहाँ पे संगीत में आपको पता है सारा जो काम है, आपके सारे संगीतकार पुरुष, आपको जाना पुरुषों के साथ, आपको परफॉर्म भी करना पुरुष, और अकेले ट्रैवल करना। तो कहीं ना कहीं मैंने ही अपने आप, जो आपकी स्टेज 1 थी, वो खुद ही मैंने विचार कर लिया कि अब तो हो नहीं सकता, कहाँ जाएंगे, और कार्यक्रम आएगा भी। तो मुझे याद है रेडियो कॉन्सर्ट्स का मेरे पास आया, तो मैंने अवनीश को बताया भी नहीं कि मुझे जाने को कहा गया है। रायपुर की कॉन्सर्ट्स थी, आकाशवाणी की,
एंड माई मदर टोल्ड माई हस्बैंड कि ऐसे ऐसे आया, वो इतना बड़ा मौका है, छोड़ रही है। और बच्चे हो गए थे तो इन्होंने कहा तुम क्यों? मैंने कहा कहाँ जाएंगे, छोटे बच्चे, गोदी के दोनों बच्चे, आई कांट डू दिस, हो नहीं सकता। और मेरी मदर फिर मेरे साथ गई, इन्होंने कहा नहीं यू गो यू दे। तो एक क्या होता है कि दैट्स फैब्युलस, नहीं तो ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता। हो नहीं सकता। मेरी माँ ने तो शादी के पहले भी मुझे कभी एक छाया की तरह मेरे साथ रही, और विवाह के बाद भी करीब 10 साल तक मुझे कहीं भी जाना था मेरे साथ साथ जाती थी। एक तो कारण कहीं ना कहीं कि मुझे भी इस बात को लेके बहुत एक डर लगता था कि उस समय कि लोग सिर्फ जिम्मेदारी की बात नहीं थी, संगीत के बारे में लोगों की जो एक आम राय थी, स्पेशली फीमेल आर्टिस्ट्स, वो आप जितने भी देखेंगे दे आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन हु हैव मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ईदर दे आर सिंगल और दे हैव समबडी फ्रॉम फैमिली ट्रैवलिंग विद देम, छाया की तरह साथ साथ। मुझे पता था कि घर का हमारे साथ तो माँ मेरे जहाँ तक था, मैं उनको, मुझे सूट करता था कि वो साथ में रहें, कि देयर इज समबडी टू यू नो कि पीपल शुड ऑल्सो नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड। Correct. एंड more than a sense of security, it was definitely more for my own comfort. And धीरे धीरे फिर लोगों से मिलना, बात करना, क्योंकि ये बड़ी अलग लाइन है। मंच की जो आवश्यकताएं हैं, मंच आपको पूरा खींच लेता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। डिमांड्स ऑफ बीइंग अ परफॉर्मर इज नॉट ओनली व्हाट यू चूज टू सिंग एंड हाउ यू सिंग। उससे पहले आपकी बात होना, आपका तैयारी होना, आपकी यात्रा के टिकट्स, आप क्या पहनेंगी, क्या ऑडियंस कैसी है, वहाँ साउंड अच्छा है भी कि नहीं, ऑडियंस की अचानक कोई फरमाइश आ गई, देन योर ट्रैवल, एवरीथिंग। इट्स जो दिखता है वो है ही नहीं, उसके पीछे की जर्नी। एग्जैक्टली। अब तो हम लोग रवां हो गए हैं, बट इनिशियली ऑफ कोर्स सब खुद करना पड़ता था। सब कुछ खुद करना पड़ता था। और आज जैसा तो न जहाज थे न सब कुछ थे। तो वो जो आपका सवाल का जवाब देने का तो यही है कि शुरू में तो वही वाली बात थी कि इन्होंने तो बिल्कुल, जैसे मैं कहती हूँ ना, मुंडेर पर से कोई पंछी को आप बोल दो कि यही है मुंडेर, और कोई पिंजरा है ही नहीं, उड़ो, तो पंछी तो कहीं जाना ही नहीं चाहता, उसको तो वो मुंडेर इतना अच्छा लगता है कि वो कहीं जाना ही नहीं चाहता। सो आई वॉज वेरी हैप्पी इन How दैट ब्लिस। beautiful. लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता था कि इतना सीखा हुआ ज़ाया हो रहा है। और मैंने धीरे धीरे रेडियो के थ्रू अपनी वो जर्नी जारी रखी। एक चीज़ स्मिता जो मुझे लगता है, मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, आज इतने फोक की बात होती है और पूरा हिंदुस्तान में इस समय आप देख रहे हैं कि रेनेसां का टाइम, कल्चरल रेनेसां के टाइम चल रहा है। लोग अब यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हैं ऑन ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, कल्चर, एंड इट इज़ ओवरवेलमिंग, इट इज़ सो वंडरफुल सीइंग ऑल दिस। लेकिन वो नॉलेज तो शेयर कर रहे हैं। फोक म्यूजिक और कल्चर इज एन एक्सपीरियंशियल, यू नो, इट्स एन एक्सपीरियंस। जैसे बोलते हैं लाइफस्टाइल, इट हैज़ टू बी एक्सपीरियंस, यू हैव टू बी दैट पर्सन, टू बी सिंगिंग दैट, टू हैव दैट कन्विक्शन, टू मेक योर ऑडियंस ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट। वो मैंने पूरा उस जीवन में पूरा निभाया। मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण देती हूँ। मुझे याद है कि अयोध्या में अवनीश थे और पोस्टेड थे, तो आलू के हम लोग लेकर के आए, बीज की आलू की बुआई होगी। तो औरतें जो बुआई करती थी उनको बुलाया, वो आई, तो बुआई जब कर तो हसिया लाई, हसिया पे काटा आलू। हसिया मतलब? हसिया जैसे कि आलू काटते हैं, ऐसे, अच्छा सा कर्व्ड वाला, ओके, करेक्ट, कर्व्ड, यस। तो हसिया पे आलू उन्होंने काटा के बाद हमसे कहा कि दुल्हन, हाँ दुल्हन तनी जाओ बिटेवा को, अपने बिटिया को तनी बुलाए ले आओ। तो बिटिया हमारी थी तब उस समय, आई थिंक शी वाज 5-6। तो मैंने कहा कि अच्छा क्यों? बोले बुलाए ले आओ तब बतावें, और बतासा मंगाए ले बाजार से। तो बताशा से मैं तो समझ गई कि मिठाई की बात है। मैं मिठाई पानी वो बेटी को ले आई, वो आई, बोले महाउर घरे है कि नहीं? महाउर माने आलता। महाउर दिया, महाउर उन्होंने बेटी को लगाया। और मैं मतलब बताते ही मेरे आंखों में आंसू हैं। महाउर लगाया मेरी बिटिया को, और मिठाई लेकर के उसके पैर पे रखी और चरण छुए, और पहला आलू उसके हाथ से बुआई शुरू कराई। माय गुडनेस। जो देवी पूजन, कन्या पूजन हम कहते हैं, तो मैं आज जो हूँ, ये सब उन अनुभवों की भी बहुत बड़ी थाती है कि जब तक आपने देखा नहीं,
हम आज कहते हैं ना कि अभी आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह कह रहे हैं, दिस इज अ लिव्ड एक्सपीरियंस. दिस इज अ लिव्ड एक्सपीरियंस ऑल्सो. अभी कांतारा पे इतनी बात हो रही है, हम लोग, इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज एंड बिलीफ, राइट. और ये जो विश्वास है कि एक बिटिया है तो वो मूर्ति पे नहीं जा रही है, वो कोई नहीं, बेटी तो है ही, घर पे बुलाओ, साक्षात लक्ष्मी साक्षात देवी है. महावर लगाए यानी कि पूरा देवी का वो करके, और उसके मिठाई यानी मीठा भी होना चाहिए. उनके हिसाब से वो लोक की उन्होंने पूजा उस समय कर ली. और मंगल कार्य है कि बुआई तो पूजा करके शुरू. तो 6 साल की बेटी से पहला आलू का टुकड़ा डलवाया. तो मैं जब बुआई के अब गाने गाऊं, या मैं कहीं भी यदि देवी के गीत भी गाऊं, तो मुझको तो वही छवि सामने आएगी. तो ये एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अनलेस एंड अंटिल यू आर दैट पर्सन हु हैज सीन दिस, हु बिलीव्स इन दिस, then songs are just lyrics. It cannot be. You know, when you're talking about Devi and your daughter and this lady, random person that you Yes. met, मुझे एक वो गाना याद है आपका जो आपने कहा था कि पुत्र के जन्म के बारे में इतने Yes. गाने हैं, Right. लेकिन आपने एक गाना गाया था सीता जी के, Correct. सीता की माँ का. Right. एक बार वो थोड़ा सा सुना बिल्कुल, दीजिए बिल्कुल, बिल्कुल. और मुझे उसके बारे में बताइए. तो गाना पहले सुनाऊं और तब बताऊं? जैसे आपकी मर्जी. पहले मैं बताती हूँ. ठीक है. ये हमने भी अपने बड़े होते हुए देखा कि जो बच्चे के जन्म में सोहर गाते हैं. सोहर माने शुभ समाचार, यानी कि शिशु का जन्म हुआ, इससे सुंदर समाचार तो कुछ हो नहीं सकता है. तो हमेशा राम के या कृष्ण के या ललना, इन्हीं के समाचार थे. तो मुझे लगा कि हम भी उस परंपरा की कड़ी हैं. हिंदी में यदि परंपरा को आप संधि विच्छेद करें स्मिता, तो पर द अदर और पर द अदर, यानी पर से पर को जो जोड़ती है वो कड़ी परंपरा. परंपरा इसीलिए है कि उस पर से इस पर को जो जोड़ता है. तो इफ आई एम दैट लिंक, तो उस परंपरा में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हम क्या देख रहे हैं, हमारी क्या अपनी सोच है, मेरा अपना क्या योगदान है. पहली बात तो मुझे ये समझ में आई कि बेटी के जन्म का जो गाने नहीं मिलते, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पराधीन भारत था. तो उस समय लड़की का जन्म हुआ. ये हमारे पूर्वज उस समय बचते थे समाज में बताने के लिए. क्यों बचते थे वो किसी का भी गेस हो सकता है कि क्यों बचते थे. छोटी उम्र के विवाह भी इसीलिए शुरू हुआ. लड़की का जन्म का शगुन न मनाना, या रात में विवाह भी इसीलिए शुरू हुआ. कोई भी आए बेटी को उठा ले जाए या ले जाए, या मैं आप आगे क्या कहूँ, आप स्वयं समझ रहे हैं कि पराधीनता के अपने ऐसे असहनीय कष्ट हैं जिसके बारे में आज हम सोच के जज करते हैं कि भाई पहले बड़ी रिग्रेसिव थी औरतें, उन लोगों ने लड़की का सेलिब्रेशन नहीं किया और दहेज देते थे या 12 साल में करते थे. ट्राई टू बिकम दैट पर्सन व्हाट इट वुड हैव बीन लाइक इन 17th सेंचुरी. हमारे यहाँ तो दिन के विवाह का ही हमेशा से चलन था. तो बेटी हुई इसकी खबर ही नहीं करते थे. वो करते भी थे तो राम का विवाह सोहर गा दिया ताकि पता भी न चले घर में कोई लड़की भी है. तो मैंने कहा कि देश बदला है, समाज बदला है, तो मैंने सीता जी का सोहर रचा. क्योंकि मैं मानती हूँ कि सीता जी इतनी असाधारण न होती तो राम इतने असाधारण न होते. राम को असाधारण बनाने में सीता जी का साथ है, सानिध्य है. और दूसरा मैंने देखा कि हमेशा बेटों की माँ का नाम उनके संग जुड़ता है. यशोदानंदन, कौशल्यानंदन. आज आप किसी से रैंडमली पूछिए सीता जी की माँ का नाम तो नहीं जानते. पिता को तो जानते हैं, जनक. आपको भी नहीं याद होगा. नहीं, आपका गाना सुन के पता लगा मुझे. तो मैंने उन्हीं की माँ से शुरू करा. सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो, अरे मिथिला मगन भैयाज सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, अरे मिथिला मगन भैयाज सिया को जन्म भयो. राजा जनक मुहर लुटावे, राजा जनक मुहर लुटावे, अरे बाटर गैया हजार सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो. ब्यूटीफुल, लवली, बिल्कुल दिल को छू जाता है. और एक बात और है, इन गीतों में आप देखें कि इंक्लूसिव सोसाइटी की कैसे बात है. हम लोग आज कितने
धर्म में, जाति में, वर्ग में उसके भी हिस्से करते जा रहे हैं। और पश्चिमी देशों ने तो ऐसा फैलाया और बताया भी है कि हम तो बहुत जाति और धर्म में बटे हुए एक विभाजित समाज थे। लोकगीत तो कुछ और कहते हैं। वो तो कहते हैं पूरा आपका उत्सव उत्सव ही नहीं है जब तक समाज का सभी वर्ग उसमें शामिल ही ना हो। इसी गाने में आगे है, झगड़े नौनिया बिगड़े नौनिया, अरे मांगे रे सोने का हार, सिया को जन्म भयो। एक गाना हम लोग गाते हैं, अरे जसुदा के भय नंद लाल, बधावा लाई मालनिया, मालन लाई फूलवारे तमोलन बीड़वारे। तमोलन यानी पान वाले की पत्नी। मालन लाई फूलवारे तमोलन बीड़वारे, तमोलन बीड़वारे। अरे अच्छा सा लहर पटोर लयाई पटहारनिया, अरे अच्छा सा लहर पटोर लयाई पटहारनिया। फिर यशोदा ने क्या क्या दिया, फिर किसने क्या क्या दिया, यानी कृष्ण का जन्म का उत्सव यशोदा मना रही हूँ। क्लासलेस वो तभी संपूर्ण है जब उसमें बीड़ा आया, जब उसमें पटिहारिन बजाजन आई एक वस्त्र लेकर के, जब मालन आई फूल लेकर के। यानी हमारे इष्टों की भी उत्सव को तभी पूर्ण माना गया जब समाज के सभी वर्ग उसमें शामिल हों। ये मैं इसलिए आई वांटेड टू मेक अ पॉइंट बिकॉज इट्स रियली it's funny when I listen to people discussing about judging Indian culture, how we were a divided society. लेकिन आप यदि लोकगीतों को देखें, आप यदि लोकगीतों के साहित्य को देखें, इंक्लूसिव है पूरा। so much। एक गाना मिलता है जिसमें एक व्यक्ति पूछता है कि मैं तो से पूछूं रे पंडित, मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये धूप निकली हुई थी बदली लेकिन अचानक कैसे छा गई। पंडित उत्तर देता है कि राम और लक्ष्मण शिकार करने निकले, आखेट करने, तो सूर्य भगवान, क्योंकि सूर्यवंशी है राम, इसलिए लजा करके सूर्य ढक गए हैं, क्योंकि ये उचित है, यानी अनुचित है आगे बताया नहीं गया है। सूर्य क्यों लजा गए, क्योंकि आखेट करना या शिकार खेलना गलत बात है। आगे राम शिकार करते, लंबा गीत है, मैं आपको उसके सिर्फ जो उसका अर्थ है उसी पर मुख्य आ रही हूँ। आखेट करते हैं, आखेट करते हुए राम को प्यास लगती है, एक हथनी का शिकार करते हैं। अच्छा। और प्यास लगती है तो प्यास लगने के बाद लक्ष्मण से कहते हैं जाओ जल लेके आओ। लक्ष्मण जल लेने के लिए जाते हैं, बहुत दूर 3-4 पहाड़ी चलने के बाद एक माली दिखता है वाटिका पे, तो सबसे पहले कहता है अपने धनुष तीर नीचे रखो। लक्ष्मण रख देते हैं, वो जाता है, इन्हें जल देता है। माली के पास से जल ले आकर के लक्ष्मण दौड़ते हुए पहुँचते हैं राम, तो राम सबसे पहले कहते हैं तुम्हारा धनुष तीर कहाँ गया। वो कहते हैं कि आप पहले जल पीजिए। जल पी लेते हैं राम, तो कहानी बताते हैं। राम कहते हैं पहले तो मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ। दोनों जाते हैं, राम तो विद्वान है ही, दोनों जाते हैं और जा करके माली के पास, जो कि अपने फूलों पर, फुलवारी पे फूल पानी दे रहा है, सबसे पहले राम अपना तीर कमान रख करके जाते हैं। तो कहते हैं बहुत आभार, आपने जल दिया, लेकिन ये बताइए हमारे तीर कमान क्यों रखवाया। ये लोकगीत है, देखिए, तो इसका ऐतिहासिकता से नहीं, इसका संदेश से इसका लेना देना है। वो कहते हैं मैं आपको पहचानता हूँ, आप राजा दशरथ के पुत्र हैं, आप राजा हैं, राजा का धर्म है आखेट करना, आप शिकार करने निकले, मैं तो माली का पुत्र हूँ, मेरा धर्म है फुलवारी की रक्षा करना, आप अपना धर्म निभा रहे हैं, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, लेकिन राजन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राम कहते हैं बिल्कुल पूछिए। माली कहता है जिस निरपराध हथनी का आपने शिकार कर दिया, उस हथनी को भी इतना विवेक था कि मेरी इस फुलवारी से अगल बगल से रोज निकलती थी, लेकिन मेरी फुलवारी को उसने कभी रौंदा नहीं, क्यों मारा। और इस गीत के अंत में है कि राम वहीं पर माली के पैरों पे गिर करके क्षमा मांग के रोते हैं। ये हमारी उन दादियों ने गाने बनाए, सिखाए और सहेज के हमें सौंपे, जिनको लोग कहते हैं वो अशिक्षित थी। लेकिन कितनी बड़ी सीख है, एक राजा एक माली से
संदेश ग्रहण कर रहा, और मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है स्मिता कि हो सकता है कि इसके बाद ही उस क्षेत्र का नाम अवध पड़ा हो, कि राम ने कहा होगा कि अब बध नहीं करना। यहाँ कोई शिकार, आखेट यहाँ पे निषिद्ध, अब इस क्षेत्र का नाम अवध है, जहाँ माली गुरु बन गया राजा का। ये लोकतंत्र, ये प्रजातंत्र, ये प्रजा की सत्ता हमें लोक में दिखती है। मुझे तो हमेशा लगता है कि ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन जो आप कह रही। पर अगर आपने माली का कहा, आपने वीवर, पानवाला सब ले आए, तो अब केवट भी ले आइए। बिल्कुल, केवट का गाना और वो केवट की कहानी वो भी ले आइए। पहली बात तो मैं बताऊं कि केवट मेरे बहुत प्रिय पात्र हैं राम कथा के। उनका जो भोलापन है, उनकी जो सरलता है, लेकिन केवट से मेरा परिचय उम्र की उस अवस्था में हुआ जब मैं कुछ भी नहीं जानती थी, और दादी के साथ गंगा नहाने जाते थे मिर्ज़ापुर में। दादी हमारी बहुत अच्छा गाती थी घरेलू गाने, और आप सोचिए उस ज़माने में, आजकल लोग क्या करते हैं ना, लोग रोकते हैं कि भाई उम्र हो गई है मत जाइए, सड़क पे कहीं कुछ हो ना जाए। उस समय मुझे लगता है मेरी दादी, इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी पक्के घाट की, लेकिन वो रोज़ उनका नियम था गंगा नहाने का। अच्छा। तो मैं 5-6 बरस की मुझे लेके जाती थी। समझिए हम दोनों को ही सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, वो अपनी उनका लोटा था ले करके धोती पहन नहाती थी। तो वो एक गाना गाती जाती थी। मेरा लोक गीतों का पहला परिचय इसी गीत से था। तो वो ये गाती थी, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। मुझे उस समय ये विवेक ही नहीं था कि ये क्यों नहीं बैठा क्यों सकते, बैठा नहीं सकते, ये क्यों ऐसे कह रहे हैं। बाद में जब मैंने गाना सीखना शुरू किया और लोक गीतों के, तो फिर केवट के प्रसंग में मैंने गाने खूब गाए। मुरी नैया में राम सवार, नदिया धीरे बहो, मुरी नैया में राम सवार, नदिया धीरे बहो, काठ की मोरी नाव नेवरिया, और काठ की है पतवार, नदिया धीरे बहो, मुरी नैया में राम सवार, नदिया धीरे बहो। वो जो केवट की सहजता है कि उनको डर लगता है कि ये तो डूब जाएगी, क्योंकि आपको बैठा सके। वो उनकी पूरा पीछे की कथा सुनते हुए चले आ रहे थे कि जिन्होंने अहिल्या को छू लिया और उनका उद्धार हुआ, तो वो पूरी तरह से उनको लगता है कि ये तो मेरी सामर्थ्य नहीं ऐसी। उनकी जो सहजता और सरलता है, और केवट को सबसे बड़ा सौभाग्य मिलता है कि लक्ष्मण सीता जी सब उनकी। तो ये गीत जब मैं सुनती हूँ तो मुझको, मेला गीत भी हमारे यहाँ एक विधा है संगीत में। हाँ। गंगा स्नान करने जाने की भी गीत हम लोग के यहाँ होते थे। हाँ। अब मुझे लगता है कि ये जो लिव्ड एक्सपीरियंस की मैं बात कर रही हूँ, कि हम लोगों ने दादी को ये सब करते हुए देखा। आज भी बनारस में आप यदि हरि दर्शन दी भोरे भोरे, हे गंगा मैया भोरे हो। ये सब गंगा पुजैया के गीत हैं, जो औरतें स्नान करती हैं, अपनी साड़ी खुद ही धोती हैं, पछोरती हैं, और नहाते हुए सूर्य को वहीं पे जल चढ़ाती हूँ, गाती हुई आती हैं। तो वो जो आप एक बात कह रही थी कि व्हेन आई सिंग यू फील दैट इवन यू कैन रिलेट टू इट एंड आई इमोट इट, तो वो सारे दृश्य मेरे सामने आ जाते हैं। बिकॉज भक्ति में सेलिब्रेशन भी है बहुत बड़ा। भक्ति इज द अल्टीमेट celebration. It is not just but you know, like, I understand what I'm trying to say probably is that it's not between you and God. जब आप गा रही हैं, it's this you know, bringing together the universe, getting everybody, it's a collective prayer. तो जैसे आप कह रही थी गंगा नहाने जा रही हैं, तो कपड़े धोते वक्त भी भगवान हैं, but there is others also who are there. So these folk songs are not just a single communication, it's a group communication, है ना? That is because folk music, और in fact उससे भी अलग, India is a society. We are a society where we
हमारी एक कह लीजिए साझेदारी की ही सोच है. वी थिंक इन कलेक्टिव, है ना? यू नो, पूरी जो जब भी. जैसे जब अमेरिकन कहते हैं ना, वी आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन. आई वाज लाइक, भाई आप अगर इंडियन है तो आप प्राइवेट पर्सन तो होता नहीं है. यहाँ पे सुख दुख गम हर चीज में, मतलब 1500 लोग अगर ना हो साथ में हाँ. तो वो बात ही नहीं बनती. हमारे यहाँ सुख दुख संघर्ष वो किसी एक के है ही नहीं. इसलिए जितने श्रम गीत यदि आप देखें, जितने श्रम गीत हैं हमारे यहाँ, उनमें किसी भी गीत में वो किसी ने एक का दुख कहा लेकिन सबके साथ कहा, तो सबका दुख सुख बन करके वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया. मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं एक कदम आगे जाके बताना चाहूँगी कि जैसे आप कभी किसी के संग कोई कहानी हुई, किसी के संग मान लीजिए कोई दुखद घटना बीती, उस घटना को धान के कटाई करते हुए सब एक साथ गाएंगे. उस एक स्त्री को जिसको शायद गुजरे भी 100-200 साल हो गए होंगे, लेकिन उसकी कथा चली आ रही गीत के माध्यम से, उसके संघर्ष की कथा सब के सब कहेंगे. जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे यहाँ कुसुमा की लाची की कहानी, ये जैसे फोकलोर में है, ये नायिकाएं हैं हमारे यहाँ. अवधी की, भोजपुरी की लोक गाथाओं की बहुत बड़ी नायिकाएं हैं. अच्छा. लाची, कुसुमा. कुसुमा की कहानी है कि कुसुमा का पति है और कुसुमा बहुत सुंदर, उसके पति, लेकिन वो एक दिन स्नान करने जाती है अपनी सखी के साथ, पनघट में पानी भर के ला रही है, और एक घोड़े पर एक मिर्जा आता है और उसको देखता है और जबरन उसको घोड़े पर बैठा लेता है. अब उस समय आप इस घटना को यदि विजुअलाइज कर लीजिए तो ये बहुत बड़ी घटना उस समय हो गई. बैठा लिया तो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या, गीत जो कहता है कि यहाँ पे जल क्या पियोगे, मेरे साथ चलो, वहाँ पे तो इतना अच्छा सागर, ऐसा वहाँ पे शाही जल है कि तुमको वहाँ पर बहुत सुख मिलेंगे. तो ये शर्त रखती है, वो कहती कि ठीक है, जाने से पहले मुझे अपने गांव का एक बार चेहरा दिखला दो. और ये गांव वापस लेके आता है तो उसका भाई मिलता है, उसका पति मिलता है, उसका पिता मिलता है, उस सबको बंदी बनाता जाता है मिर्ज़ा. तो ये कहती है एक शर्त पे चलेंगे, सबको छोड़ो. तो गाने में है कि वो फिर कुसुमा का भाई छूटता है, पति छूटता है, पिता को भी छोड़ देता है. कहती है अंतिम बार, अब तो जीवन भर तुम्हारा जल पीना ही पीना है. अपने गांव के जल को एक बार प्रणाम कर लें, हम लोग तो उसको रोज प्रणाम करते हैं. तो मिर्ज़ा घोड़े पे बैठा ही जाती है और उसी में जल समाधि ले लेती, लौटती नहीं. मैं देख रही थी जब पद्मिनी के ऊपर इतने, जौहर पे इतने सारी डिबेट हो रही थी, तो उस समय वाद विवाद पूरे देश में चल रहा था. कई लोग कह रहे थे कि ये एक पराजित मानसिकता से ही लोग जौहर कर सकते हैं या आत्मवध कर सकते हैं. ये तो मैं आपको लोकगीत बता रही हूँ, कितना पुराना है कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी धान की रोपाई के समय औरतें कुसुमा की कहानी गाती हैं, क्योंकि आज जो हमारे लिए सामान्य चीज़ है, उस समय चुनौती रही होगी कि हम कैसे रक्षा करें, हम कैसे उदाहरण रखें लड़कियों के सामने कि भाई कोई बात यदि हो जाए तो कुसुमा हमेशा के लिए एक सती के रूप में या नायिका के रूप में, देवी के रूप में लोक मन में प्रतिष्ठित है. उसके आपको मंदिर नहीं मिलेंगे, इतिहास पे कोई किताबें नहीं मिलेंगी, लेकिन गाथाओं में वो चरित्र है और पूर्वजाओं ने गीतों में उसको बांध करके सौंपा. एक व्यक्ति कभी गया, लेकिन उसका संघर्ष स्वयं को बचाने का, अपनी अस्मिता को बचाने का, वो एक नज़ीर बन गया. बाकी लोगों के लिए भी वो कहानी के रूप में चलता रहा. साझेदारी यानी कुसुमा के लिए नहीं रही, उसका संघर्ष, उसका सुख, उसका दुख, ये सब का है. मैं आपको इसी के संग दूसरे पे चल रही हूँ. एक गाना मैं गाती हूँ, एक हमारे यहाँ पे, वो भी निराई का गाना है. निराई यानी कि बहुत टेक्निकल उसमें जा रही हूँ. धान की रोपाई तो सब समझते हैं, और उसके बाद निराई होती है जिसमें खरपतवार उगाते हैं ना, उनको भी सफाई करना. और एक बात मैं यहाँ पे स्मिता कहना चाहती हूँ, ये प्लीज, एंड आई थिंक ये एप्ट प्लेटफॉर्म है टू टॉक अबाउट इट जी, कि हम सोचते हैं आज शिक्षा करके महिलाएं बहुत सशक्त बन गई हैं. विमेन एम्पावरमेंट की जो बार बार हम बात करते हैं कि सारे काम आज कर रही हैं. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे लगता है ये इतना बड़ा भ्रम है. महिला सशक्तिकरण वास्तव में देखना तो खेत में काम करती हुई गाँव की आज भी स्त्री पुरुषों से ज़्यादा नहीं तो उनसे कम काम नहीं करती. जितना एनिमल हस्बेंड्री का काम है, जितना भी आप इसको समझ लीजिए कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मछली, धान की रोपाई,
कटाई, ये सब स्त्रियां करती हैं। ये आप चाहे पूर्वोत्तर देख लीजिए, दक्षिण भारत देख लीजिए, अपने गांव, लेकिन जमीन किसान उनके नाम बोलते है। हैं हम, हाँ। तो हमारे दिमाग में साफा बांधे एक पुरुष की कल्पना आती है। बिल्कुल। महिला किसान आप सुनेंगे नहीं। ये तो भला इस सरकार ने पहली बार, अब की बार मैंने देखा महिला किसानों को पद्म सम्मान दिए हैं, तो पहली बार महिला किसानों की चीजें सामने आई। शुरू से इट हैज बीन सो इग्नोर्ड एंड टोटली आई वुड से अंडररेटेड देयर सर्विसेज। जितनी भी, मैं रुपाई, जब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम खरपतवार हटाने का काम बहुत बड़ा है। आजकल तो ट्रैक्टर से सब कुछ हो जाता है, पहले बैलों की जोड़ियों से होता था। खरपतवार यानी कि जो भी आपका उगाई आती है, उससे फसल की पौध पैदावार रुकती है, उसको हटाने का काम करती थी। तो एक गीत हमारे यहाँ गाते हैं थे, बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया ले बीरन की बाबुल, बलैया ले बीरन की। मेरे बाबा, इस नीम के पेड़ को मत काटना। निमिया पे चिड़ैया का बसेर, इस नीम के पेड़ पे ये चिड़ियों का बसेरा है। मैं तो इस घर से जा रही हूँ, मैं अपने भाई की बलैया लेती हुई जा रही हूँ। मेरा भाई जुग जुग जी है, लेकिन ये नीम का पेड़ मत काटना। बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जई है, बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जई है, हो अरे रही जई है निमिया केर, बलैया ले भैया की। बाबा निमिया के पेड़ जन काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया ले बीरन की। Oh, so beautiful. And वो भी that pathos जा रही है, जाते जाते she knows she has no right to tell her father, but it's a request, but so much pain in that also. But look at the messaging. The messaging, beautiful. नीम का पेड़ मत काटना। आज हमको ये तो अब सुनना पड़ता है UN से, कौन कौन सब संस्थाएं जो बताती हैं सेव नेचर, इकोसिस्टम की बात करती हैं। बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जाई हैं। नीम का पेड़ कटा तो चिड़िया कहाँ जाएगी? ये कितना पुराना हमारे यहाँ का लोकगीत है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि they have not been decoded the way they should have been, you know. This is the reason, exactly the first question you asked me, that this is why I feel that there is a need to talk about what you are singing. There is a need to talk about the messaging. There's a need to talk about the value education that our grandmothers wanted us to understand and know. So these are उनको ये बड़े concepts नहीं पता था, पर so much ज्ञान even in that stories that they told. करेक्ट। जैसे जो अब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, आप ये देखिए कि नीम का पेड़ हर घर में पहले होता ही था। आज भी गांव में वो घर ही नहीं जहाँ नीम का पेड़ ना हो, क्योंकि अकेला एक नीम पेड़ निरोगी रखता है पूरे परिवार को। तो नीम का पेड़ नहीं काटना मतलब ये एक सिंबल है ऑफ स्ट्रेंथ, ऑफ वननेस एंड कल्चर, ट्रेडिशन। और उसको अपना दुख नहीं है, पेड़ का है। जो आज हम लोग वननेस की बात करते हैं ना, कि सेव द वर्ल्ड, सो प्रोटेक्टिंग द नेचर, इट इज सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। और मुझे ये बार बार लगता है स्मिता कि हमारे जो गानों के बारे में, ये एक फोक म्यूजिक के बारे में मिसकॉन्सेप्शन है, दैट दे वर मेजरली entertaining songs, you know. They were when people got tired from work, they used to create songs जो entertain करते थे. This is how they entertain themselves. No, it is beyond that. और मुझे तो कहीं ना कहीं, this is my own understanding of so many folk songs that I have gone through, that I believe, I should say, that since we went through very difficult times, you know, as a nation, as a society, as a culture where we were slaves, right? So
there were no gurukuls, there were no पीठिकाएं where girls would go and study. So this was a way of educating. बट मालिनी जी, जो रिस्पेक्टेबिलिटी क्लासिकल म्यूजिक को मिलती थी, मतलब आप 90s या इवन 2000s तक देख लीजिए, वो रिस्पेक्टेबिलिटी फोक म्यूजिक को नहीं मिली. मतलब आप खुद देख लीजिए, इफ़ योर पेरेंट्स टोल्ड यू कि हम कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं, तो कॉन्सर्ट किसका होता था? सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक का. आई डाउट इवन इफ़ योर पेरेंट्स वुड हैव टेकन यू कि हाँ फोक म्यूजिक सुनने के लिए किसी कचहरी, आई एम सेइंग अगेन इट्स अ साउथ इंडियन वर्ड, बट टू गो फॉर अ कॉन्सर्ट ऑफ अ फोक सिंगर, वो तो होता ही नहीं था. No, but there you are wrong. अच्छा. In fact, I was exposed to great folk singers. अच्छा. Akashvani radio जो है, radio was a big, I would say Akashvani has done wonderful job in protecting that legacy. I'm talking of that particular era. So Akashvani में folk artists आते. That is how I in fact heard them, and I was in Gorakhpur, which was again a regional speaking I guess small town. towns, Yes, small town where I had that exposure and listening to folk songs sung on dholak. My Taiji, again I was exposed. But you are right. This was primarily the reason why I chose folk over classical music. And I thought that, in a society, in a world where even I will be very frank enough to accept and admit that even classical musicians, classical singers were also, they were very keen to... if you not down keen, also, na? No. थोड़ा सा, उनका भी हाथ रहा है in creating that divide. If society, the organizer, everyone, folk was here, classical was there, and I said, who gives then anybody this power to judge or bifurcate? इसका मतलब ये कि आपने कभी गहराई से जाना नहीं, समझा ही नहीं. 7 सुरों का 12 सुर और 7 सुरों की पूरी गणना है संगीत. लोक ज्यादा पवित्र है, सशक्त है, क्योंकि वहां ये दिमाग किसी का नहीं चला कि हमें किस ताल में क्या निबद्ध करना, सोच कर इस राग में ये सुबह. नो, वहां सोच नहीं थी, वहां ह्यूमन इमोशन था. किसी को दुख हुआ, किसी को कुछ अच्छा लगा, किसी ने देखा कि वीर कुंवर सिंह ने ये किया, मंगल पांडे ने किया, तो आल्हा रचा. वहां पर दिमाग से ज्यादा दिल चलता था, और जहां दिल होगा वो हमेशा ज्यादा प्योर एक्सप्रेशन होगा. और अगेन it was a collective representation of a society that one had experienced. Classical was again, एक गुरु ने सीखा, राग इजाद किया, शिष्यों को सिखाया, लेकिन यहाँ वननेस थी ऑफ सोसाइटी. महिलाओं ने जो दुख देखे, चकिया पीसती औरतें, कोल्हू में गन्ना की पिराई करती औरतें, रत जगह में जब रात में शादी के समय औरतें बैठकर ढोलक में दुख सुख गा रही हैं, तो घर की जितनी पॉलिटिक्स है, घर के जो सोशल एंगल्स हैं, उनको भी हंस हंस के कह देना. मुझे तो लगता है ये बोल्डनेस तो आजकल औरतों में नहीं, जितनी बोल्ड उस समय औरतें थीं. खुल के कह देना, काला रे बलम मोरा काला, काला रे. आज इतने गट्स किसमें कभी नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता. पहले जमाने में लोग औरतें जो हैं, अरे इस घर में मेरा गुजारा नहीं ननदी, इस घर में अरे सासू मोरी आवे सो आवे मोरी दीदिया. आए तो भैया आए, गज भर का घूंघट काढ़ूं फिर भी कहे मुंह खोला, अरे फिर भी कहे मुंह खोला, मुंह खोला मेरी दीदिया, इस घर में मेरा गुजारा नहीं. They were so pure at heart. खुल के बोलती थी जो कहना था. मैं तो समझती हूँ कि ये गाने एक महिला की आज़ादी की सबसे बड़ी रत जगह एक उत्सव था. आज आपको इसके लिए श्रिंक के पास जाना पड़ता है. यू हैव टू टेक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन. देयर बॉन्डिंग वाज सच कि वो देवरानी जेठानी बैठ करके भी एक दूसरे की वो कह रही हैं. अब वो जितनी गॉसिप मोहल्ले की वो ढोलक बजाएंगी, उसी में उन्होंने कह दिया कि अरे देवरा बुलावे अटारी, चुनरिया भी जय हमारी. तो वो जो बुढ़िया जो सब ढोलक बजा रही अम्मा, वो कहीं कि हम कही तरह है कि पुत्तन के लक्षण ठीक ना रहे, रोज सांझ संझा के बेर देखो तो मुंडे पे आई जाए थे, नाइन मटक्का करी थे. ये जो चीजें हैं कि वो हंस सकती थी अपने ऊपर, अपनों के बीच अपना दुख सुख कह सकती थी. मुझे लगता है आज तो वो शेयरिंग नहीं है, वो साझेदारी नहीं है, और वो पॉलिटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसी में ही अभी है. वही
मतलब उस टाइम कुछ अलग ही शायद रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और उनको तोड़ने का एक अजब अंदाज था। लेकिन आजकल जो है यू कैन नॉट से, जैसे आपने कहा कि काला है या मूछे हैं हाँ, हाँ। या फला जगह मत जाओ या जाओ, वो आप कह ही नहीं सकती ना कि यू कांट टेल योर डॉटर कि यू कैन नॉट गो, रात को देर से नहीं जा सकती तुम बाहर। नो नो इस नो नो पे नो, भी। मैं एक बात बताऊं इसमें, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये रात में देर तक, ये भी मुझे पता है कि आजकल बहुत जो वो कल्चर है, आई एम यूजिंग दैट टर्म, वो कल्चर में बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है कि वो भाई आप बहुत बैकवर्ड हैं, बहुत ट्रेडिशनल हैं, ये है वो है, और आजकल नहीं कह सकते। हम लोग एक कजरी गाते हैं, कैसे खेलन जैबू सावन माँ कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। कैसे खेलने जाओगे, अंधेरा हो गया। ननद कहती हम तक खेले जइबे भौजी कजरिया, बदरिया चाहे बरसे भौजी। मैं तो जाऊंगी। भाभी कहती क्योंकि बड़ी है, तू तो जात हऊ अकेली, केहू संग ना सहेली। अरे गुंडा इसको। रोक लाई है तो हरी डगरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। हाँ, इस गाने में दोनों चीजें हैं। पहली तो एक वुमन लिबरेशन भी है कि ननद इज अ रिबेल, शी सेज कि अंधेरा हो चाहे जो, मैं तो खेलने जाऊंगी। दूसरा एस्पेक्ट भी है कि नसीहत भी, भाभी कह रही है कि अकेले जा रही हो, कोई साथी संग नहीं, तुम्हें गुंडों ने रोक लिया तो क्या होगा। वो अपनी जगह ठीक वो है। अपनी जगह ठीक है, लेकिन नंद का सेलिब्रेशन गाने का पहला ही ये है कि मैं तो खेलने जाऊंगी। वो गाने में यही कहती है। ये गाना अपने आप में जो टू थ्योरीज हैं कि जिसको जाना वो जाएगा, रोकने टोकने का यदि बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं अपना काम तो वो अपना काम कर रहे हैं। यू शुड नॉट जज पीपल फॉर दैट। लेकिन मुझे लगता है कि ये वोक में कहीं ना कहीं अब आ गया है कि reacting to everything being said, everything being told. But I think, in my opinion, I think women were stronger and bolder earlier, Smita. When I say this with full responsibility because आप अपने घर में देख लो ना स्मिता, आप अपने घर में 3 जनरेशन्स में याद करो तो आई थिंक आपको अपनी दादी या नानी एज द पेट्रियार्क, पूरे घर की जो आपको जो सबसे मजबूत जिनके बल पे घर चलता होगा, आपको अपनी वही याद आएगी। मतलब कि जिनको वो डिसाइड करती थी किसको क्या व्यवहार देना है, कहाँ जाना है। घर की देहरी भी कौन घुसेगा कि भाई इनके मित्र के लक्षण ठीक नहीं, विमेन यूज्ड टू डिसाइड। आप ध्यान दीजिए, घर में क्या होगा औरतें डिसाइड करती थी, घर के बाहर जो है वो बाहर जिसको जो करना है वो करे। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आज विमेन आर वेरी वीक, दे आर डूइंग सो मच इमोशनली, लेकिन वीक हैं, मुझे बार बार लगता है। और उसका कारण ये है कि देयर सो मच ऑफ प्रेशर व्हेन दे आर यंग टू मेक अ करियर, to multitask, to do so many things, and somewhere following their heart, following their career, they feel that they will be left out, in that race if they compromise on other things. मुझे लगता है कि पहले की औरतों के फंडे बड़े क्लियर थे कि क्या था, शादी होना है, बच्चा होना है, वो एक एक्सेप्टेड नॉर्म था उनके लिए। बट अदर देन दैट दे वर लीडिंग फुल लाइफ। घर जाती थी मायके तो 1-1 महीने रह करके आती थी, 1.5 महीने घर होके के आती थी। बहनों की से थी कि कब क्या करना है, अपने घर में, अपने खेती में, अपनी किसानी में, दे हैड ऑल फुल। और इन गानों को यदि सुने तो वहाँ पर मुझे लगता है द स्ट्रेंथ of being bold enough to accept what is going wrong in their family or not so right in their relationship, to be bold enough to accept that in a mehfil. I think how many people will have guts to accept that? मालिनी जी, in आजकल ये टर्म्स आती हैं, जेंडर फ्लूइडिटी, वोकिज्म जैसे आप कह रहे हैं, या फिर रिबेलियन, विमेन एम्पावरमेंट। आपने विमेन एम्पावरमेंट की बात की, बट इवन दैट एक्सपीरियंस, जैसे 14 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में आपको गाना दिया जाता है कि आप इसको इमोट कीजिए, आप इसको गाइए, और उसमें वात्सल्य है, मोह है, माया है। हाउ डू यू ब्रिंग दैट? क्रोध आपने शायद 14 की उम्र में, 13 की उम्र में वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। जेंडर फ्लूइडिटी, आपको कहा जाता है आप कृष्ण का रोल बन के आप कीजिए, आप महिलाएं, यू हैव टू डू द रोल ऑफ कृष्ण। How do you do that? So these are terms which nobody knew these terms. Yes. But आप as an artist आप कर रही थी।
You know, how did you do that? How does an artist do all this? Take multiple roles. करेक्ट सो स्मिता आई थिंक एक पहली इस बात की शुरुआत में एक चीज मैं कहना चाहूँगा, आर्टिस्ट्स आर डिफरेंट, दे आर बॉर्न डिफरेंट, दे हैव डेफिनेटली आई थिंक देयर इज समथिंग डिफरेंट हियर. अलग चिप होती है क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स और एन इवेंट is different. It's very sensitive. So I think they are gifted in a way. But speaking about myself, I was I am a very observant person. And I'm a good reader. I still read. I've read a lot. As I mentioned in the beginning, that at a very young age, I was collecting poetries and, poetries by great shayars. But it's not just like if you read the poem, आप में वो how do you emote empathy- it? हाँ. Yes. So you see, it is like ये तो हम देखिए वहीं पर बात ले आए कि लता जी ने कैसे, जैसे उन्होंने गाया बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, तो वो you don't have to be to become a mother to be able to sing that. I think artists are gifted. Secondly, सबने पढ़ा है सूर्य का वात्सल्य वर्णन, सबने कन्हैया का बाल प्रसंग पढ़ा है, सबने राम के जन्म का सोहर गाया है. कितने लोग अपने को कौशल्या की जगह रख के देखेंगे, कितने लोग यशोदा के लोगों के लिए वो शब्द होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं. मैं तो पहुंच गई वहीं वृंदावन, मैं गोकुल में हूँ उस समय, मेरे लिए अभी कान्हा आए हैं और मैं तो कृष्ण के लिए, मैं तो ये जो अंदर से भाव आया है कि मैं क्या गाऊं, मैं क्या ना कर दूं अपने कान्हा के लिए, दिस विल वेरी आपसे, हमसे, किसी और से. और यहीं पे आर्टिस्ट का अपना इंटरप्रिटेशन to a situation, be it a song, be it a poetry, is different. आप जब 14 साल की बात कर रही हैं, तो by the way, have you learned dancing or music? Yes. Because this what you asked is a question which can come from a person who has experienced this. You have. Yeah, I have. Because I learnt dance and it was the same thing that it was taught to me and कि ये करना है. Now, I am 12, I'm 13. Yes. I'm nowhere near a mother. Right. How do I experience it? How do Right. I emote it? How do I role play? Right. But with conviction. Because आप यशोदा का role कर रहे हैं. You're not doing any mother's role. Right. You're doing a Ultimate role, mother, जो कि ultimate, बिल्कुल, right? बिल्कुल, You, yes. a mother who has to love a child who Yes. she has not given birth to, Yes. who has been given to her, and she realizes that this is a divine child. Correct. और वो जब बच्चा मुंह खोलता है and she sees the universe in that अंदर, mouth. yes. अंदर, मतलब जब तक आपके मन में आप that भाव doesn't come, बिल्कुल. आप उसको इमोट नहीं कर सकते. एंड इट्स द सेम. आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई, आपके ब्राह्मण परिवार में शादी हुई, लेकिन अनलेस यू फील दैट केवट का भाव, जी. आप केवट का फीलिंग नहीं ला सकते अपने में. हाउ डू यू डू इट? मैंने एक बात शुरू में कही थी स्मिता कि मैं हमेशा दूसरे की तरफ से सोचती, तो जो पात्र है उधर उस घटना के भीतर घुसना होता है. और मुझे लगता है वो अंतर्दृष्टि हम सबको भगवान ने दी है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, बस यही फ़र्क है. आपको मैं बताऊं, मैंने जो कई टैबूज जो तोड़े, उनमें एक ये था कि जैसे हमारे यहाँ महिला कलाकार बिरहा नहीं गाती थी उस समय. अच्छा. बिरहा हमारे यहाँ पूरब की बहुत लोकप्रिय विधा है, लोक विधा, जो अधिकतर हमारे यहाँ यदुवंशी जिसको ज़्यादातर गाते हैं. अच्छा. और इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ धोबिया है. हाँ. धोबिया एक लोकप्रिय नृत्य है गाजीपुर का, आजमगढ़ का. जैसे धोबियों का उनका अपना ये फोक डांस है. एंड आई बिगैन परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. और मुझे लगता था कि व्हेन आई वाज डूइंग इट 25 years ago, तो पीपल द आईब्रोज बिल्कुल ऐसे थी कि अच्छा ओके, क्योंकि एंड IAS ऑफिसर्स वाइफ. वो तो एक अलग ही, लेकिन उससे भी ज्यादा एक, क्योंकि महिलाओं के लिए लोगों को ये था कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, बैठ करके डिसेंटली गाना गाना है और गा करके उठ जाना है. एंड हियर आपको फोक में तो जब तक आप उस मिजाज में नहीं आए, अब बिरहम यदि गा रहे हैं, जहां पंच तहां परमेश्वर, जहां कुआं ना तहां कीच, इसका मतलब समझी? नहीं. जहां पंच है वहीं पे परमेश्वर है, जहां कुआं होता है उसी के बगल में कीचड़ है. अरे ओही कीच का बना चौतरा, जहां
पंच नवावै शीस, और उसी कीचड़ से वो चबूतरा बनता है। बिल्कुल। जहाँ पंच परमेश्वर में परमेश्वर आता है उसको। पंचा बैठे मड़ई मड़ई, इस मड़ई बैठे पंचा 5 बैठे हैं। छोट बड़ा एक तूल, कौन छोटा बड़ा इस पर ही विवाद हो रहा। अरे केकरा में खोसूं, केकरा में जोड़ू हाथ मोरे राम जी, अरे केकरा में खोसूं बेलई के फूल, किसको फूल चढ़ाऊं, किसको प्रणाम करूं, क्योंकि 5 में दोनों ही भाई भगवान है, ये बड़ा है कि ये छोटा है। बने किसके हैं, जिसे कीचड़ कहते हैं, उसी मिट्टी के बने। ये देशज बिल्कुल, जिसको रॉ आप कह सकते हैं, नॉलेज ट्रेडिशन से गाने निकले हैं। ये सारे पुरुष गाते थे। आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। इसी तरह से धोबिया जो हमारे यहाँ गाते हैं, तो मुझे लगता है ना, जब मतलब आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, आई इनफैक्ट मैं बिल्कुल इसके एकदम इस तरह से खिलाफ हूँ। मुझे लगता है लोक साहित्य में, लोक गीतों में जिस तरह के वननेस की बात की गई, एज अ सोसाइटी वी नीड दैट, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस आई ब्रोक दैट टैबू एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग ऑल दीज सॉन्ग्स। जब हम ये धोबिया गाते हैं, धोबिया के कलाकारों के साथ नाचती हूँ हम लोग, अपने इन कलाकारों के साथ। तो ये हम लोग धोबिया जुड़ाला बलमा, ए जुड़ाला बलमा, जुड़ाला बलमा, हमरे अचरा के छैया जुड़ाला बलमा, हमरी अचरा के छैया जुड़ाला बलमा। अरे 4 महीना रहे गर्मी के दिनवा, गर्मी के दिनवा रे गर्मी के दिनवा, जुड़ाला बलमा, अरे जुड़ाला बलमा, हमके झूला में झूला द बलमा, हमरी अचरा के छैया जुड़ाला बलमा, हमरी अचरा के। उनका डांसिंग का एक अलग पैटर्न, एंड दैट इज हाउ आई डांस, एंड आई जस्ट फ्रीक आउट ऑन स्टेज बिकॉज फोक sets you free. And because it is by nature, you know, free poetry, there's no restriction. It is so pure, coming from heart and traveling there. So on stage also you have to be a very free spirited person to believe in these lyrics. And I try to think about it. कबीर ने जैसे बहुत कुछ धोबियों पे, धोबी को बिंब मानकर, धोबिया जल बिन मरत पियासा, इस तरह के कई गाने लिखे हैं कि जो दुनिया भर का जो मैल साफ कर रहा है, वो थक करके जब अपने श्रम गीत को गाएगा तो उसमें श्रृंगार होगा, उसमें रस होगा, और अपनी थकान से चूर होकर के तो उनका बड़ा एक मटकते हुए से थिरकते हुए डांस होता है. सो आई परफॉर्म दैट ऑन स्टेज एंड आई फील दैट आई एम वन ऑफ देम. मालिनी जी, यू स्पोक अबाउट गोइंग टू बॉलीवुड एंड ऑल. एक अरसे तक द एंटायर आइडिया ऑफ एक जैसे जो कहते हैं ना मापदंड होता है, वो लता जी की आवाज. yes. कि मतलब वो स्वीट सी सुरीली सी आवाज, गॉड ब्लेस हर, शी हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच टू आवर म्यूजिक. लेजेंड तो देवी हैं, है ना. लेकिन पर जब हम फीमेल क्लासिकल फीमेल आवाज की सोचते हैं, वुमेन सिंगर की सोचते थे बॉलीवुड की, वो सो व्हेन पीपल asked you to sing कि अरे आप इतना अच्छा गाती है, बट जाके फिर किसी ने बोला कि आप लता जी की तरह गाइए. नहीं, इसमें ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही कि हम लोगों के उस ग्रोइंग अप टाइम पे और हमेशा के लिए फीमेल वॉइस का एक पैरामीटर उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया, आशा जी, लता जी, कि दिस इज हाउ फीमेल वॉइस शुड साउंड एंड नोबडी कैन साउंड लाइक देम. बट वो फर्स्ट ब्लैक से गाना है, या काली सुर आपका सा होना चाहिए, दैट शुड बी द स्केल, दिस इज परफेक्शन की. एक तो ये बात थी कि मुझे अपने वॉइस की स्ट्रेंथ वीकनेसेस शुरू से पता थी, और मैं जिस इलाके से हूँ, लखनऊ की हूँ, हम लोग बेंचमार्क कहीं ना कहीं बेगम अख्तर जी को मानते थे, जो कि जिनका की स्केल ही 4th ब्लैक जो हमारा है, जो क्योंकि वो खरज में गाना क्लासिकल और वो गज़लों के अलावा ठुमरी, दादरे, पूर्वी, होरी भी जो गाती थी वो उसी अंदाज से. और पूरा भंग जो बनारस का गाना, चाहे वहाँ पे आप सिद्धेश्वरी देवी जी को देखें, रसूलन बाई जी को देखें, या हमारी गुरु अप्पा जी को देखें, उनका भी गाना बजाना इसी सुर, इसी मिजाज का था. तो कहीं ना कहीं आई फेल्ट दैट आई डोंट हैव टू बिकम समबडी हु आई एम नॉट, एंड आई रिलेटेड मोर टू पूराबंग गायकी एंड टू लखनऊ दिस.
बट यस, एक बार दो बार ज़रूर ये हुआ कि जब मैं गज़लों का, क्योंकि रेडियो में ग्रेडेशन का सिस्टम होता था, तो मैं जब म्यूजिशियंस जब कॉन्सर्ट्स में साथ में बजाते थे तो वो हमेशा कहते थे कि अरे इसमें इस सुर में तो हमारा साज नहीं है, इस सुर में तो नहीं, आप पहली काले से गाइए। हमने कहा नहीं, एवरीबडी इज बॉर्न विद अ वॉइस कल्चर, वॉइस टिम्बर है हर एक की आवाज़ का। सो आपकी अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर उस पर काम करें, डोंट ट्राई टू बी समबडी यू आर नॉट। तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत कम उम्र में वो चीज़ एक रियलाइजेशन था, और उस पर ही मेरा काम था। जैसे टेक्निकली से लोग समझ जाएंगे, फोर्थ ब्लैक वाज माय स्केल फॉर क्लासिकल म्यूजिक, तो उसी पे ठुमरी, दादरा, आप जितने भी बड़े कलाकारों को आप सुनेंगे जो बनारस का संगीत है वो सारा इसी स्केल का है। सो दैट वाज नेवर एनी डिबेट और नेवर एन ऑप्शन टू ट्राई टू साउंड लाइक समबडी। हर शिष्य और गुरु शिष्य की जो हम परंपरा की बात करते हैं, इट्स अ बॉन्ड विच कांट बी एक्सप्लेन्ड एज अ कि इस गुरु शिष्य का ये बॉन्ड था और उस गुरु शिष्य का एक बॉन्ड अलग है सबका। आप अपना बताइए। इट वाज सो ब्यूटिफुल। मैं क्या कहूँ स्मिता, आई फील सो ब्लेस्ड। I feel blessed not only that I learned from my Guru, Padma Vibhushan Girija Devi ji, I also feel blessed that we are probably one of the last ones who have learned from the traditional Guru Shishya Parampara, how it was supposed to be. That is how she taught us. कभी उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया। ये आज के लोगों के लिए जो म्यूज़िक में हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए जानना, सुनना, समझना भी। She never charged a single rupee. Really? शिष्यों से वो धन नहीं लेती थी। पहली शर्त, देखिए मैं यहीं से बात शुरू कर रही हूँ, कि जब ज्ञान देने में शिष्य का भाव उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, कि किस समर्पण से वो जुड़ा है, किस श्रद्धा, किस लगन से जुड़ा है। धन नहीं, बस वो जो गुरु पूजा होती थी हमारे गुरु पूर्णिमा पे, उसमें जो शिष्य अपने मन के भाव से दे दे, उसके बाद भी उनके सिखाने पे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आपकी उम्र क्या थी जब आप उनसे मिली? अप्पा जी से मैं पहली बार जब मैं मिली हूँ तो हम मिले हैं उनको जब मैं 7-8 साल की थी, मिर्ज़ापुर में। इट वाज अ लॉन्ग रिलेशनशिप इन अ वे वेयर मी एंड माय मदर केप्ट इन टच विद हर। और मिर्ज़ापुर में विंध्याचल उत्सव में गाने आई थी, हम लोग सामने बैठे थे, वो देवी जैसी लगती थी वैसी थी। मच लेटर भातखंडे में आई वॉज इन फाइनल ईयर वोकल म्यूज़िक, एंड उस समय वहाँ प्रथा थी कि जिस विधा का जो कलाकार गाएगा तो उसी फील्ड का, देश का नामचीन कलाकार गाएगा। सो इन 88 आई वॉज द फाइनलिस्ट, आई हैड वन। तो 25 मिनट का एक मेरा रिसाइटल था और उनका परफॉर्मेंस था। तो शी वॉज सिटिंग इन द ग्रीन रूम पीछे। उन्होंने सुना, मेरी माँ ने तुरंत पैर छूने को कहा और हमसे कहा, तो उन्होंने पहले हमको देखते हुए कहा कि बढ़िया जवारीदार आवाज़ हो तोहार, तो चलबू कलकत्ता चले। ITC में तब वो म्यूज़िक रिसर्च एकेडमी में सिखाती थी। तो मेरी माँ ने कहा कि भाग्य देखिए, आज आप, हम तो जीवन भर चाहते रहे, आज आप कह रही हैं इसकी शादी है 2 महीने में। तो आई वॉज गोइंग टू गेट मैरिड, अक्टूबर की बात है, दिसंबर की। उस समय ये पाँव छूते मुझे लगने लगा कि मतलब मुझे लगा क्या मेरी डेस्टिनी है कि उनका मैं कैसेट्स, उनके रेडियो में चीज़ें मैं रिकॉर्ड करके सुनती थी और वो मांग रही हैं लिटरली और हम नहीं सीख पा रहे। बट लगन होती है ना, तो कैसे चीज़ें मिलती हैं। हम उनको जब कॉन्सर्ट करने बनारस जाते थे तो मिलती थी मैं उनसे जाके, और इट जस्ट सो हैपन कि अवनीश की पोस्टिंग हुई बनारस इन 98। और बस हमने इनसे सीधे नवरात्रि में हुई थी पोस्टिंग, अयोध्या से काशी इनकी। तो मैंने कहा ये तो बाबा ने मुझे, इसलिए कि उनका नाम गिरिजा है ना, गिरिजा माने पार्वती, तो हमने कहा बाबा ने इसीलिए मुझे बुलाया है। और मैंने कहा ये ज्वाइन करें। मैं तो वहाँ गई तो उनको शायद उस समय लगा होगा, क्योंकि सुनती तो रही थी, कि भाई सब अफसरों का होता है कि कंटिन्यूटी रह पाएगी कि नहीं, भाई कोई भी हम भी किसी को सिखाएंगे वो रह पाएगी कि नहीं। लेकिन वो दिन था, मैंने कहा बस आप मुझे स्वीकार कर लें। तो चूंकि मैं कई गुरुओं से सीखी थी और मैं गा रही थी, मेरा एक स्टाइल बन चुका था, तो उन्होंने कहा बेटा नया सीखने के लिए पुराना भुला दो, ये मैं कैसे कहूँ, लेकिन नया आएगा भी तब जब वहाँ जगह स्लेट क्लीन होगी। मैंने कहा आप ये मान के सिखाएं, मुझे कुछ नहीं आता। हाँ। और मैं पूरी तरह समर्पित उनके लिए हो गई। 20 साल का जो पूरा समय रहा है, स्मिता कलकत्ता उनके घर जाके सीखना, बनारस में साथ रहना, वो भी लखनऊ या दिल्ली आई या मेरठ आई तो घर पे ही रहना, और इनको दामाद, हमारे बच्चों, सब नानी ही उनको बोलते थे। उस तरह का संबंध
वो जो पवित्रता है और उनका जो सिखाना में वो गुरु थी, सख्ती थी वहाँ पे, उसमें पूरा अनुशासन था। लेकिन जहाँ पे जो एक बेटी की तरह से कि वो खाना बनाना भी सिखा रही हैं, कौन आया है मिलने, यदि ऑर्गेनाइजर से वो बात कर रही हैं फ़ोन पे तो हम लोग को कहती थी बात करो, तो वो उसमें भी सिखाती थी। एक छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ, एक कोई आए, बनारस की बात, हम लोग 2-3 वो उन्होंने ऐसी हंसी की बातें शुरू की, बनारस का ना एक अपना बातचीत ही, करने हाँ। का अंदाज अलग है। वो इतनी हंसी की बात, हम लोग को भी, मेरा तो ब्याह हो चुका था, हमारी 2 गुरु बहनों की शादी नहीं हुई थी, तो वो दोनों को इतनी हंसी आई कि जैसे पीट पीट के हंसने लगी, नहीं हाथ पैर मार मार के हंसने लगी। अप्पा ने देखा तो हमको भी पीट के, हम लोग भी ऐसे ताली बजा करके सब तीनों हंसने लगे, जबकि शिष्य थे। हम लोग भूल गए कि हम लोग को चुप रहना चाहिए। जब वो चले गए तो बोली बड़ा मजा आ रहा था, तो हम लोग चुप हो गए। बोले जिसको जानती नहीं, जिसको बूझती नहीं, दांत चिया के हंस कैसे रही थी, बत्तीसी कैसे हिली खुली गई थी। हम लोग तो उस दिन ऐसा तीनों, हमारी दोनों गुरु बहनें, हम लोगों ने, एंड इतनी सुंदर सीख ऑफ बीइंग इन योर ओन, यू नो, एक आपका जो मर्यादा की जो एक लकीर है, कि बाहर का कोई व्यक्ति आया है जिसको आप जानते भी नहीं है, हाउ नॉट टू गेट सो फ्री और नॉट लेट एनीबडी पर एल्स आप टेक यू। अनुशासन की बात कर रही थी, एंड दिस गुरु शिष्य परंपरा में जो अनुशासन की बात है, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं कि आप उन्हें कहिए कि बहुत फर्क है, बहुत सीधा फर्क होके आ गया है। बैठिए, बिल्कुल। गाते वक्त आप चौकी मार के बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, आई नो, आप कह के तो देखिए कि आप सही, मतलब वो कि आपकी आवाज ही नहीं निकलेगी अगर आप ऐसे स्लाउच करके बैठेंगे, एंड यू कांट एक्सप्लेन इट, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। टोटली योग है ना, संगीत योग है। हम लोग की पहली जो शिक्षा गुरुओं ने दी, शुजात साहब वगैरह कहते थे कि जो आसन है, और मुझको देखिए, हमारी गुरु को देखिए, शी लेफ्ट अस व्हेन शी वाज 89, और उस उम्र तक, शॉर्ट ऑफ 90 साल तक वो आलती पालती मार के 2-2 ढाई घंटे तक प्रोग्राम करती थी, जमीन पे बैठ के सिखाती थी। ये वो योगासन ही है। लेकिन आजकल आई एग्री, इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, ये फिजिकल पोस्चर के अलावा बाकी डिसिप्लिन्स भी आप यदि सिखाएं, टेलिंग देम व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। जैसे हम सब गुरु, हम लोग जितनी शिष्याएं थी, उन्हें खाना बनाना ज़रूरी था, बिस्तर बिछाना ज़रूरी था, कोई आए तो पहले पानी के संग मीठा लाना, ये गुरु सिखाती थी हमें। और वो, उनको ये पता था कि मैं बाल बच्चेदार हो गई थी, मैं तो मुझे पता होगा ज़्यादा उन शिष्याओं से ज़्यादा, तो वो कहती थी कि इनको देखो ऐसे करो। तो वो उनके एक एक चीज़ में हमें लगता है यही गुरु शिष्य परंपरा थी कि बियॉन्ड, इट टुक यू बियॉन्ड म्यूजिक लर्निंग। अब उनके टीचिंग से मुझे याद आता है, 6 बजे का कार्यक्रम है, तो वो ऑर्गेनाइजर की गाड़ी आएगी 5:30 पे लेने के लिए, 5 बजे वो तैयार होके बैठ जाती थी ड्राइंग रूम में। हम देखते हैं आजकल लेट पहुंच रहे हैं शिष्य लोग या प्रोग्राम में आर्टिस्ट, बट शी वाज सच अ डिसिप्लिन, सो लाइक वेरी सिंपल, लाइक हर अटायर, हर होल, और वो जब स्टेज पे आती थी तो कुछ और ही, मतलब देवी पूरी तरह देवी। हमको तो शी वाज अ डिवाइन सोल। आप सोचिए, हमें याद है उनका, मैं आपको इसलिए कि आर्टिस्ट किस मिट्टी का बना होता है, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, तो मैं कलकत्ता देखने के लिए गई, हो गए थे 15-20 दिन, तो उसके बाद में पहुंची, तो मैं आश्चर्यचकित रह गई कि वो, हम लेटी हुई थी, देख करके हम लोग जब खाना खाने लगे उनको देखने के बाद, तो देखा कि वो चल के दरवाजे तक आ गई। आई वॉज शॉक कि उनको जाके लिटा दें, कि उनका भी यहाँ सब स्टिचेज थी। तो बोली नहीं, वो तुम्हारे लिए हमने छेना रख करके, लीची के गुठली निकाल के उसमें छेना डाल के मिठाई बनाई है, उसको खा के जरूर तुम पहले बताओ कैसी बनी है। वो जो मैंने उनकी जो जी विशा देखी कि एक शिष्य आया है, उसके लिए मिठाई उन्होंने बनाई है, 15 दिन ओपन हार्ट सर्जरी को हुए हैं, तो 10 दिन जो मैंने उनके संग स्मिता उस समय बैठा है, वो मेरे बड़े खूबसूरत दिन थे, क्योंकि गाना सीखने के बजाय उनसे बातें बहुत हुई। तो वो उस समय शी वॉज 80 एंड शी यूज्ड टू से कि वो अपने पुरानी रिकॉर्डिंग सुना करती थी। अच्छा। और कहती थी हमें ये बस इसकी चिंता है कि मैं 80 के बाद कैसा गाऊंगी, और यदि वैसा नहीं रहा जैसा गाती थी तो मैं छोड़ दूंगी। तो हाउ टू बी अ परफेक्शनिस्ट, हाउ टू बी सो। सॉन्ग दैट यू थिंक कि जब वो आप सुनती हैं तो इमीडिएटली यू रिमेम्बर हर? So many of them, but there is one. One. Bye.
बाबुल मोरा, बाबुल मोरा रे, नैहर छूटो ही जाए रे, नैहर छूटो ही जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, नैहर छूटो ही जाए. Universal ना, every woman would feel it. Yes. Is इसीलिए it? तो मैं क्या गाऊं, लेकिन this is something in Bhairavi that it is so much her. So. Yeah. You know, we were talking about every woman is told that छोड़ दो, you know, at some point of time. क्या एक मंच जरूरी होता है? Because many times women are told तुम गाती हो, घर में गाओ ना. स्टेज की क्या जरूरत है? मंच की क्या जरूरत है? श्रोताओं की क्या जरूरत है? Isn't this enough that you can sing at home? इसके दो बातें हैं, इसमें दो पक्ष हैं. पहला तो ये है कि स्टेज से बड़ा गुरु कोई नहीं है. मंच सबसे बड़ा आपको शिक्षा देता है. ताली गाली मिलना दोनों जरूरी है. मंच आपको बताता है, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड वही तय करता है. इट टीचेज यू टू डिसाइड व्हाट टू सिंग. दिस इज, आपने सोच रखा हम ये गाएंगे, जनता तो कुछ और मूड में है. प्रेजेंस ऑफ माइंड, टाइमिंग, आप कुछ सोच के गए, अगले ने कहा नहीं रैप अप करिए, या कहा नहीं अभी आधा घंटा और गाइए. तो यू नो मंच की डिमांड, बिकॉज देयर आर पीपल हु डोंट नो यू, दे हैव कम टू लिसन टू यू. मंच विल टेल यू वेदर पीपल आर विद यू or not. Munch will teach you to manage a show, because at times sound will not be up to your expectations, your musicians will not be in sync, or you may be facing a rowdy crowd, or maybe too serious a crowd. You never know. So Munch stage is so essential for any artist to become a complete artist. You have to experience that, and to become a great artist, you have to experience stage at a very young age. And recognition, आपको तो पद्मा अवार्ड मिला है. Is it, उसमें एक भगदड़ होती है, and many people say कि लॉबी करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, और बिना अवार्ड्स के आप उस लेवल पर नहीं पहुंचते. Is the competition something that breaks many artists? मैं इस पर बाद में आती हूँ. जो पहले बता रही थी उसका दूसरा पक्ष भी ले लूँ. हाँ प्लीज. दूसरा पक्ष जो आपने कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वो रहने दो. आप यकीन नहीं करेंगे, 10 साल पहले तक हमारे ही अपने घर में, हमारी अपनी जो एक बहुत हमारी प्रिय परिवार के, वो कहते थे कि अब हो गया, अब क्या करना है, अब भाई पातोलिया सब कुछ पाना से मतलब उनका था प्रतिष्ठान, नाम सब मिल गया. तो मैं उनका चेहरा देख के सोचती थी कि उनको बताना भी बेकार है कि आई एम नॉट डूइंग दिस टू प्रूव अ पॉइंट टू एनीवन. I am not doing this to get something. It is my own self-expression. I can't be any other person but to perform. That's me. तीसरी बात ये होती है कि जो बहुत सारी स्त्रियों जिनका कि महिलाओं का जो करियर नहीं चल पाता, उसमें बहुत बड़ा तो दोष उनका खुद का होता है. कई बार आई नो इसको शायद सुन के बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, और वो मैं इसलिए बिलीव करती हूँ स्मिता, इस संसार में किसी भी स्त्री को कोई आगे नहीं बढ़ाता जब तक कि वो खुद नहीं आगे बढ़ना चाहती. हम लोग ब्लेम करते हैं सर्कमस्टांसेस को, सास ऐसी मिल गई, हस्बैंड ऐसा मिल गया, बच्चे हो गए. आई हैड एवरीथिंग लाइक दैट. मेरे बच्चे तो 24 साल में 2 बच्चों की माँ थी मैं. हमारे यहाँ सो कॉल्ड एक इतना अभिजात्य में, ब्यूरोक्रेसी में, हमारे अवनीश के कुछ सीनियर्स की वाइफ्स थी इस तरह की. आप क्योंकि वो तो इतनी एलीट कॉलोनियल टाइम की थी कि आप समझ ही दिए. हम 88 बात बताए, 50s 60s बैच के जो अधिकारियों की जो पत्नियां थी कि बट वाई फोक मालिनी, आई मीन यू हैव सच एन अमेजिंग वॉइस, बट वाई फोक. एंड the very question with that, those
high raised eyebrows when they judged me for that. I thought this is the very reason, Malini, you need to tell them, you need to sing things, you need to advocate this strongly, because I think the poor souls, they have no idea about the wonderful. One day they might, why not, Malini? है They're ना? all they all came back praising and congratulating. How but lovely. to have to develop जी. that courage, बिल्कुल. to not get carried away by how people are perceiving. मुझे आपको छोटा सा एक उदाहरण अपने घर का बताऊं. हमारे फादर इन लॉ, who was a great soul, and he was very very fond of me. Yeah. हमारी जब शादी तय हो गई, तो हमारी शादी के बाद रेडियो में आते थे, जब प्रोग्राम में एक दो कार्यक्रमों की तैयारी हुई तो म्यूजिशियंस घर पे आए, तो हम आई यूज टू अवॉइड दिस. 7-8 साल बीत गए तो म्यूजिशियंस घर पे ही आए. तो हमारे फादर इन लॉ, हमारी मौसी से कहा कि हमने तो सुना था रेडियो पे गाती हैं, ये तो स्टेज भी. तो वो बात हमें पता भी चली. अब वो एक घटना मैं आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कभी भी इसको आलोचना की दृष्टि से नहीं देखा. मैंने उनकी समझ, उनकी सोच ही, उनकी पीढ़ी, Circumstances, उनकी हाँ. पीढ़ी की तरफ से देखा कि भाई अब ये मुझे अपने अंदर ताकत पैदा करनी होगी कि इस कला के प्रति, मंच के प्रति उनके मन में आदर भाव जगे. दैट इज नाउ अप टू मी टू इस चीज को इतना बड़ा बना दो कि people come back praising you, people come back respecting the art that you pursued, the passion that you pursued, because nobody will be there कि आप माला पकड़े हो कि जब आप शुरू कर रहे हैं, आइए अब तो बहुत अच्छे हैं. You get criticized, you get rejected, you get booed on stage. I have faced all this, Shweta. Really? All this. Who doesn't? I have. But बात क्या है कि आप उसमें से क्या लेते हो. हाँ. मैंने उसमें से सिर्फ पॉजिटिविटी ही लेनी चाहिए. बहुत सारी लड़कियां हमारे यहाँ, जो मैंने इतनी अमेजिंग सिंगर्स अपनी लाइफ में देखी हैं, हु हैव नॉट परस्यूड, मुझे इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं वो हिम्मत हार गई, टूट गई क्योंकि ना. परिस्थिति जो है वो तो कभी भी आपके साथ नहीं होती है. मुझे कई लोगों ने जो बोला कि आपने कम बैक किया, आप बाद में गाने के लिए आई, तो मैंने कहा येस, दैट बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी श्योर that family and children were my responsibility, and I will do when I'm not guilty of ignoring anything, neglecting anything. But all that time मैं अपने को पका रही थी, reading, experiencing, जैसे वो मैंने खेत वाला आपको किस्सा बताया. So I feel that partly stage and the conviction for women that what you are doing is right. People, if they judge you doing stage, and women are judged if they're singing. पीपल, क्योंकि मुझे याद है हमारी माँ सिखाती थी, तो एक हमारे पिताजी के डॉक्टर ही थे, उनकी वाइफ बोले कि मिसेस अवस्थी स्टेज कराना है क्या, इतना अच्छा गाती है इसको, लेकिन इतना क्या आप उसके संग संग स्टेज कराना है क्या. सो एट द टेंडर एज एट 16 आई न्यू दैट मे बी स्टेज इज नॉट सच अ गुड थिंग, बिकॉज सी हाउ पीपल आर टॉकिंग. सो अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर दे वर कमिंग फ्रॉम, yet pursuing your goal and trying to change that perception. I think I managed to change that, not only for myself but in general about folk. क्योंकि लोगों का एक फोक के बारे में जो ग्रेस है फोक में, जो फोक की डेप्थ है, एक फोक का जो नॉलेज ट्रेडिशन है, दैट नीड्स टू कम फॉरवर्ड. आई रियली ट्राई टू वर्क फॉर इट, क्योंकि व्हेन आई टॉक अबाउट फोक सॉन्ग्स, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट generations of our grandmothers who have nourished this. Now coming to the Padma awards. Yes. Awards are definitely, I think, somewhere good reassurance of telling you that you are doing good. But at the same time, वो कहीं आपको इससे आपको क्या कहना चाहिए, they cannot control you or guide you whether you should pursue your goal or not. Any kind of acknowledgement is always good. But having said that, I will definitely like to add this, that I'm very, very happy to see one change in the society, in the country, in the way this government has for the first time recognized folk arts and folk culture and has honored folk artists in abundance. I'll give you, and how? I will give you an example. When I was awarded Padma Shri in 2016, can you believe? This was a first Padma in folk category
from a state where we have a population of 23 crore after 24 years. Imagine. कैन यू इमेजिन? एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, ब्रज ऐसी जहाँ पर लेगेसी है, वहाँ पे गुलाब बाई जी के बाद, विच वाज आई थिंक 94-95 के बाद मुझे मिला 2 दशक के बाद. 2 दशक के बाद पद्मश्री. जबकि मैं नाम लेना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे लल्लू बाजपेयी जी आल्हा के इतने बड़े कलाकार, राम कैलाश यादव जी बिरहा के कजरी के इतने अच्छे कलाकार, दे ऑल वेंट अनसंग. लेकिन जिस बार हमको मिला तो मैंने उस बार पहली बार ही नोटिस, आई डोंट थिंक एनीबडी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन मैंने तब ध्यान दिया था कि उस बार 5 अलग अलग, छत्तीसगढ़, गुलाबो सपेरा जो अपने राजस्थान की थी, एक तेलंगाना से थे, एक तमिलनाडु, 5 different folk artists. So, and I think when I accepted it, I said that I believe it even today that it was a recognition of a tradition, of a rich tradition of Uttar Pradesh. I never see it as an individual contribution or my own way. It belongs to, the tradition of Ganga, Jamna and Sarju and Rapti. Before I let you go, I know I can't say which is your favorite song, which is the most cruel thing to ask anybody. It is. Favorite कौन सा है? लेकिन आपने अभी गंगा जमुना तहजीब के बारे में कहा, and you keep talking about your heritage of, Kashi, Yes. and and your Lucknow heritage, having lived in That small is why town. it is so difficult to choose, because है ना? even Lucknow कहाँ से heritage मेरे- and Kashi heritage अलग. are two different heritage. Yeah. इसी तरह से मथुरा का अलग है, बुंदेलखंड का अलग है. मुझे लेकिन लगता कोई है सिम्बियोसिस, कोई जुड़ा, उसमें कोई लिंकेज अगर आप सोचें, that which song would you think links, or it's Okay. close to your heart, anything that you would love? So there are many songs, but I will sing one song which is about migration. And migration is something which is true to Awadh and Banaras both, to Bihar, to northern India. माइग्रेशन की तो कहानी बड़ी पुरानी है, अपनी जड़ से दूर जाना. लेकिन ये गाना हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है यूपी बिहार में. मैं कहीं भी जाऊँ इस गाने की खूब फरमाइश होती है. आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मैं छठ मनाने ऑस्ट्रेलिया गई थी. अगेन स्पीकिंग अबाउट द पावर ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज. और वहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम के बुलाया, वहाँ भी इस गाने की फरमाइश. तो रेल पे सवार होकर के किसी का पति मजदूरी करने चला गया. उस ज़माने में तो जब का गाना है तो अंग्रेज़ों क्या, कलकत्ता, आज की तारीख में वो कहीं भी जा सकता है. उसी पृष्ठभूमि का गाना है. गाना वियोग का है, लेकिन क्या हमारी अमेजिंग, हमारी पीढ़ी, हमारी पूर्वजाएं थी कि उन्होंने उस दुख के समय को भी कैसे हंस के, किस तरह से गा के बिताया उसी पे. तो अगेन इट्स अ सॉन्ग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आवर ग्रैंडमदर्स. रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन. जौन टिकसवा से सैया मोर जई है, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन. जौन सहरवा को सैया मोरे जई है, आगे लागे सहर जल जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन. जौन साहबवा के सैया मोर नौकरी है, जिनकी नौकरी में गए उन्हीं को कुछ हो जाए, लौट आई हैं घरे. जौन साहबवा के सैया मोर नौकर, गोली दागे साहब मर जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन. सब कुछ मना लिया लेकिन पति नहीं लौटे. अब बिरहन को लगा हो ना हो कुछ और चक्कर है. अरे जौने सौतनिया के सैया मोरे आशिक,
अरे सैया मोरे आशिक बलमा मोरे आशिक जौने सौतनिया के सैया मोरे आशिक खाए धतूरा सौत बौराए रे लिया बैरन पिया को लिए जाए रे लिया बैरन Beautiful. Rail. Can you imagine calling a rail as Bairan? रेल बैरन है और आप देखिए पर्सोनिफिकेशन और उस पूरे एकांत को, उस पूरे विरह को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना, हाँ. गा करके, गाने के माध्यम से, अगेन जो मैं स्ट्रेंथ कह रही थी कि दे वर सच स्ट्रॉन्ग वुमेन. हस्बैंड काम करने के लिए गया है लेकिन वो पूरा उसमें और सब कुछ मना लिया, बाद में देसी इलाज धतूरा, शक है कुछ हो तो वही लड़की का चक्कर है, अच्छा धतूरा खिला दो, दिमाग खराब हो जाएगा, बौरा जाएगी तो फिर वो खुद ही घर लौट के आ जाएंगे. सारे एक्सपीरियंसेस आ गए ना, विरह भी आ गया, मोह भी आ गया, देयर इज सस्पिशन आल्सो, देयर इज एंगर एंड जेलसी एंड देयर इज आल्सो वेनम कि उसको, एंड देयर इज एंगर टूवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑल्सो. पहले अंग्रेज थे तो गोरों के लिए कहा जाता था. और टाइमलेसनेस फोक की यही है स्मिता कि आज भी मैं जब गाती हूँ मंच पे तो मैं यही कहती हूँ कि हम में से कौन ऐसा है जिसने कभी न कभी हस्बैंड्स के बॉसेस को नहीं कोसा. तो इट कैन बी इट कैन बी एनीवन ऑफ अस. करेक्ट. बिफोर नाउ दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट गोराज, तो जाते जाते एक आई रिमेंबर लिसनिंग टू दिस वन सॉन्ग दैट यू सैंग कि जो हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, हाँ. राष्ट्रभाव की बात करते हैं, तो गांव में भी एक गाना था विच आई रिमेंबर यू सिंगिंग दैट एन ऑर्डिनरी वुमन सेज कि मैंने अपने बेटे को भेजा है फॉर नेशनल सर्विस, व्हाटएवर, वो जाते जाते ये गाना जरूर. थैंक यू सो मच फॉर दिस रिक्वेस्ट. ये गाना ढूंढते मुझको जो मिला और मैंने जब इसका पूरा टेक्स्ट देखा तो मुझे लगा कि हम लोग आज बोलते हैं ना कि नेशनलिस्ट हैं, अपने देश को जो प्यार करते हैं वो हाइपर नेशनलिस्ट ये भी बोलते हैं. दैट इज अगेन अनदर टर्मिनोलॉजी, वोक वर्ड. यस. और मैं सोचती हूँ कि पहले जो बच्चे को जन्म देने के पीछे माँ का क्या सोच थी, तो वो उसको इतनी खूबसूरती से डिस्क्राइब करता है कि गाँव में भोजपुरी का ये माँ कहती है, सुन लागे दिया बिनु मंदिर मांग सिनुर बिनु हो, ललना वैसन सुन तिरिया गोद एक बालक बिनु हो. जिस मंदिर में दिया न जलता हो तो भवन भर है. मंदिर तब बना जब वहाँ पे पूजा हो रही हो, दिया है. ऐसे स्त्री का सौभाग्य है जब मांग भरी हो, और स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य है जब गोदी में एक हंसता खेलता शिशु हो, बेटा या बेटी. आगे बहुत है जो अंत है उसका. वो पूछती ये शिशु मुझे क्यों चाहिए, तो वो कहती है, पूतवा को देबो मैं देसवा की सेवा में, देसवा की सेवा में हो, अपने बेटे को मैं देश की सेवा में दूंगी. पूतवा को देबो मैं देसवा की सेवा में, देसवा की सेवा में हो, के ललना बाढ़ हुई है देसवा के काम आई है, जन्म हमार सफल हुई है हो, के ललना बाढ़ हुई है देसवा के काम आई है, जन्म हमार सफल हुई है हो. मेरा बेटा जब बड़ा होगा और देश के काम आएगा तब इसको जन्म देने में मेरा जन्म सार्थक होगा. ये कितना पुराना गाना है, किसी ने नया नहीं लिखा, ना आज का बना है. यानी देश की अवधारणा हमेशा से थी और ऐसे संतान को जन्मने की भी अभिलाषा जो देश के काम आए. So beautiful. You said at that time that we are wired differently. Artists are wired differently. मतलब मैंने ये कोई भी जो गाने आपने गाए ना, I just said it to you randomly. हमने कोई रिहर्सल नहीं किया कि मैं ये गाना बोलूँगी. There are no instruments and there's no diary. And for you to remember these words, you're blessed. अरे
You are blessed. Thank you so much, Malini ji. Thank you. It's been such an illuminating conversation with you. Thank you so much, Smita. Thank you for this conversation. And it didn't feel like we were, part of something which is being recorded. It just felt like we were talking. Good mercy. And maybe that is because you have also learned music Yes. and culture, because that Yes. shows that reflected in your questions also. Thank you so much for making me a part of your podcast. Thank you so much, Malini ji. Thank you. Thank you for listening or watching this podcast. Do like and subscribe on whichever channel you have heard this or seen it. Namaste. Jai Hind.